Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is Dr. Prasenjit Das, currently JR3 in the Department of Pharmacology, AIMS Kalyani, and I am back with one of my tutorial videos. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. So in today's video, I am going to cover the topic that is pharmacoeconomics, and it is from the perspective of practical. Okay, so MBBS practical. So in today's video, first we are going to have a little bit of tutorial, and then we are also going to discuss the exercises which can be asked as numericals in your practical. So before proceeding further, let me give you some alerts. So first thing is that we are going to discuss this under two parts. Okay, so first, thoda bahut we are going to discuss about the theory of pharmacoeconomics. Then we are going to discuss about the questions. You can note down your doubts, and it will be open for discussion in the group. And you can have one writing pad or iPad or tab जो भी आपके पास हो, along with a calculator, so that you can solve the questions when I am discussing the questions. And very important thing, no need of taking any notes. All you have to do is just focus on this class. Undivided attention चाहिए. Okay, so आप कुछ concept miss ना करो. So that is how we are going to go with this class, and I'm going to use both English and Hindi so that the conversation remains very uh, easy to understand, or it is very comfortable for me also. So let's begin. So first, definition of pharmacoeconomics. Okay, so what do we mean by pharmacoeconomics? Pharmacoeconomics is basically a science that deals with the impact of pharmaceutical products and services. Pharmaceutical products and services का मतलब है mainly drugs, okay, on the economy of individuals, that is basically the patients and their family, bystanders, and the health system and the society. Then it identifies, measures and compares the cost of the resources consumed. मतलब जो दवाई हम ले रहे हैं along with the दवाई investigation हो गया सब, all those things are actually consumed, right? So उनका cost and their consequences. Consequences means the effect. So suppose if we are taking antihypertensive, so what will be the effect? It will be decreasing the blood pressure. So that is what we are going to do in pharmacoeconomic studies. So this is in short definition of pharmacoeconomics. That is the science which deals with the impact of the drugs, mainly pharmaceutical products and services, on the economy of the individual, society and health system. ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल में आने वाला नहीं है, बस आपको ये याद रखना है. नाउ what we are going to study is this thing, so this is important. इसके बाद के दो स्लाइड्स आपको पूरा फोकस से सुनना है, क्योंकि यहाँ पे मेनली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द formula which are being used for doing the pharmacoeconomic analysis. So we know in pharmacoeconomic analysis we are having two types of pharmacoeconomic analysis. P is nothing but pharmacoeconomic analysis. Okay, एक तो है partial pharmacoeconomic analysis. We are not going to discuss that because it is not required in UG level. It is going to come in PG level. So for keeping it simple, we are going to just discuss about complete pharmacoeconomic analysis. This is the one because this is going to be asked in your exams also. So under complete pharmacoeconomic analysis, we are having four types. Okay, first हो गया cost minimization analysis, that is CMA. Then we have cost effectiveness analysis, that is CEA. Then we have cost benefit analysis, cost utility analysis. Okay, so CMA, CEA, CBA, CUA. Cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost benefit analysis, cost utility analysis. आप मेरे साथ रिपीट करो, ठीक है? Like whenever I'm saying this, you repeat this, because once you see this video, after that you don't have to just go through this video. You can move on to the next topic. आपका जो next topic आपको पढ़ना है and all, you can relax based on that. So that you can get all the concepts during this class only, और आगे पढ़ना नहीं. Then अब आते हैं मेन स्लाइड में. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज दिस इज हैविंग द formula for all the different types of analysis. First, we have cost minimization analysis. It is done when the outcomes of two treatments are equal. Suppose we are taking antihypertensives. Let's take the example of antihypertensives. Antihypertensives काफी तरह के होते हैं. So we have one group that is ACE inhibitors. Okay, under that, let's take one example, like we can take Ramipil. And then we also have another antihypertensive, that is amlodipine, which is coming under the category of calcium channel blockers. ठीक है, तो अब सपोज ऐसा लेके चलते हैं कि अगर आप एम्लोडिपिन खा रहे हो या फिर लैमिपिल खा रहे हो, ठीक है, दोनों में आपको सेम इफेक्ट दिख रहा है, सेम आउटकम आ रहा है. लाइक इट बोथ ऑफ देम, दे आर डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर बाय 10 mm ऑफ Hg. ठीक है, तो मतलब दोनों का क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है. बट इन दोनों मेडिसिन का कॉस्ट सपोज डिफरेंट है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे?
Suppose Ramipril का cost, let's take an arbitrary cost. Okay, suppose Ramipril costs about 10 rupees एक tablet, suppose like one tablet या capsule जो भी है 10 rupees. On the other hand, calcium channel blocker जो अपना amlodipine है, it costs about 12 rupees. So definitely we are going to save those 2 rupees, right? तो हम कौन सा prefer करेंगे? 10 rupees वाला, that is Ramipril. So that is what we are going to find out in cost minimization analysis. That is, we are going to find out the difference in the cost of two treatments when the outcomes produced by the two treatments are equal. So cost of drug A or cost of regimen A minus the cost of drug B or cost of regimen B. ठीक है, तो यहाँ पे A में कौन सा आ जाएगा? A में आ जाएगा आपका एम्लोडिपिन, क्योंकि उसका कॉस्ट कितना था? 12 रुपीज। एंड ऑन द अदर हैंड दूसरा क्या है? रैमिपिल, उसका कॉस्ट कितना था? 10 रुपीज। तो सो 12 - 10, सो 2 रुपीज। सो 2 रुपीज का बेनिफिट, सो लाइक 2 रुपीज आप बचा सकते हो इफ यू आर गोइंग विथ what? Ramipril instead of going with amlodipine. So यही है cost minimization analysis. You will be provided two different types of regimen. उनका cost आपको दिया जाएगा. You will be asked to find the cost for at least like the treatment for 1 month or 1 week, and then they will also provide you the frequency. Like some of the drugs need to be taken once in a day, twice a day, thrice a day. Based on that, you have to multiply. Basically, simple maths है और कुछ नहीं. And then finally, total cost जब आपके पास आ जाएगा दोनों रेजिमेंट का, दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है. And then you will get the cost difference. अब आते हैं नेक्स्ट दो में, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस एंड कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, CEA CUA. तो एंड वी हैव वन मोर, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो इन तीनों में आप एक चीज नोट करना, यू विल गेट सम रेशियोज. ये यही है जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में मिलेंगे. यू विल हैव टू फाइंड आउट दिस रेशियोज. ओके, ACER, ICER, ACUR, ICUR, BCR, IBCR. अब इसको कैसे याद रखेंगे? ACER एंड ICER. आपको ये याद रखना है कि हर एक में, ठीक है, दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. हर एक में आपके पास में दो रेशियोस होंगी. एक होगा ACER या ACUR या BCR, या फिर ICER, ICUR, IBCR. और इसको याद रखने के लिए कुछ अलग से कुछ करना नहीं है आपको. कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ठीक है. तो CE तो आपको पता है क्या होगा करके. अब खाली A और R बचा है. सो फर्स्ट is average cost effectiveness ratio. Then we have incremental cost effectiveness ratio. Similarly, for cost utility analysis, we have average cost utility ratio, incremental cost utility ratio. Then cost benefit analysis में BCR, that is benefit cost ratio, then incremental benefit cost ratio. ठीक है, तो आपको जस्ट जो एनालिसिस है उसी को आपको याद रखना है. तो देन यू विल गेट द टू रेशियोस, ACER, ICER, ACUR, ICUR, देन BCR एंड IBCR. ठीक है, अब आते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में. हर एक में आपको सिर्फ अल्फाबेट्स को फॉलो करना है. ठीक है, सो फर्स्ट है एवरेज कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो. मतलब total cost of a particular treatment divided by the total effect which is being produced by the treatment. ठीक है, आप सोचो कुछ आपको रेजिमेंट मिला है वर्ड प्रॉब्लम में, लाइक इट इज हैविंग, इट कॉस्ट somewhere around like 10, and then effect is also provided. It can be in the terms of the different clinical effects. Okay, it can be blood pressure हो गया, sugar हो गया, ठीक है, it can be anything, lipid level हो गया, that will be provided to you. Okay, so what you will do, you will just find out average cost effectiveness ratio. So C पहले आ रहा है, E उसके बाद आ रहा है. तो C आपका रहेगा न्यूमरेटर में, एंड देन E इफेक्ट रहेगा आपका डिनोमिनेटर में. ठीक है, जस्ट अल्फाबेट्स को फॉलो करना है हमें. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल इफेक्ट, दैट इज एवरेज कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो. नेक्स्ट, एक स्टेप अहेड, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो. इंक्रीमेंटल जैसे ही वर्ड आ जाता है, इट मींस वी आर सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एक तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है, हर एक में सेम चीज है. कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस में भी सेम है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में भी सेम है. बस जब इंक्रीमेंटल आ रहा है तो अब आपको कंपेयर करना है दो रेजिमेंट्स में. ठीक है, आप एवरेज कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो से भी कंपेयर कर सकते हो, बट वो इजी है कंपेरेटिवली. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो में सपोज आपको दो ट्रीटमेंट दिया हुआ है, दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है, और दोनों का इफेक्ट भी आपको दिया हुआ है. ठीक है, सो अगेन सेम अल्फाबेट को फॉलो करेंगे, दैट इज C एंड देन E. तो ऊपर में आपका क्या आएगा, कॉस्ट, एंड नीचे डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, इफेक्ट. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ ड्रग ए माइनस कॉस्ट ऑफ ड्रग बी डिवाइडेड बाई इफेक्ट ऑफ ड्रग ए माइनस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी. ठीक है, क्लियर?
तो फर्स्ट हमने देखा क्या है एवरेज, एंड देन उसके बाद में हमने क्या देखा है इंक्रीमेंटल। सो एवरेज कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो, उसका मतलब क्या है टोटल कॉस्ट बाय टोटल इफेक्ट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे, ये याद रखना है आप सबको, ठीक है। ACER ICER, तो ऊपर में कॉस्ट रहेगा, नीचे रहेगा इफेक्ट, ठीक है। एवरेज के केस में क्या है, सिर्फ डायरेक्ट डिवाइड करना है, टोटल कॉस्ट बाय टोटल इफेक्ट। इंक्रीमेंटल के केस में क्या है, कॉस्ट ऑफ ड्रग ए माइनस कॉस्ट ऑफ ड्रग बी डिवाइडेड बाई इफेक्ट ऑफ ड्रग ए माइनस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस में, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे आपको दो ड्रग्स, अगेन अगर आपको एक से ज्यादा ड्रग देंगे इसमें डेफिनेटली, तो फर्स्ट है ACUR, अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ACUR का मतलब कि एवरेज कॉस्ट यूटिलिटी रेशियो। सो हियर व्हाट इज द फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट बाय क्वाली। So what is quality? Quality is nothing but quality adjusted life years. So that is basically the utility component, जो हम U जो बोल रहे हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय क्वाली। सो C एंड U, तो कॉस्ट अगेन न्यूमरेटर में आएगा, उसके बाद में यूटिलिटी जो क्वाली से रिप्रेजेंट होता है दैट विल बी कमिंग इन द डिनोमिनेटर। क्वाली का क्या बोलते हैं फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए, दैट इज क्वांटिटी ऑफ लाइफ, दैट इज नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स इनटू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो ये दोनों ही आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स, ओके, एंड देन क्वालिटी ऑफ लाइफ सम नंबर, सो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दैट एंड यू विल हैव टू गेट द क्वाली फॉर दैट, ठीक है। दैट यू विल अंडरस्टैंड वंस वी गो टू द न्यूमेरिकल्स, ओके। फॉर द टाइमिंग आपको ये जानना है, ACUR मतलब क्या है एवरेज, तो यहाँ पे कोई माइनस वगैरह कुछ आने वाला नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो फिर C न्यूमरेटर में मतलब कॉस्ट न्यूमरेटर में आएगा, एंड U यूटिलिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाली विल बी कमिंग इन द डिनोमिनेटर। ओके, सो टोटल कॉस्ट बाय क्वाली। Then we have ICUR, एक step ahead. I मतलब incremental again, so it is incremental cost utility ratio. Again जैसे हमने incremental cost effectiveness ratio में किया था, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ में भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, दैट इज CU मतलब न्यूमरेटर में आएगा आपका कॉस्ट एंड U दैट इज इन डिनोमिनेटर। सो कॉस्ट ऑफ A माइनस कॉस्ट ऑफ B, दैट इज कॉस्ट ऑफ ड्रग A माइनस कॉस्ट ऑफ ड्रग B डिवाइडेड बाय क्वाली विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्रग A एंड क्वाली ऑफ ड्रग B, ठीक है। क्वाली इज नथिंग बट क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, और उसका फॉर्मूला भी हमें दिया हुआ है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ लाइफ, दैट इज नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स इनटू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बोथ दिस विल बी प्रोवाइडेड in the question. Sometimes you might be provided with the quali directly, तो उस केस में आपको ये मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन आता है जहां पे यू गेट डायरेक्टली द क्वाली फॉर ड्रग ए क्वाली फॉर ड्रग बी, देन यू डोंट हैव टू डू दिस नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स इनटू क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट एनालिसिस। अब आते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सिर्फ इसको आपको सेपरेटली याद रखना है, बाकी सारे एनालिसिस में आपने देखा होगा कि पहले कॉस्ट आता है, उसके बाद में इफेक्ट या यूटिलिटी जो भी है, बट इन केस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ओनली इन केस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कॉस्ट नीचे आने वाला है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वाई इसको मैंने अलग से रेड में रखा है, ताकि क्या बोलते हैं ये आपको याद रहे। ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक इन दिस, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इट इज वेरी सिंपल टू डू, बट जब भी क्वेश्चन आता है, और व्हाट इज द नॉर्मल टेंडेंसी, वी हैव अ टेंडेंसी दैट हम कॉस्ट को हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं, एंड देन वी कीप द इफेक्ट या जो भी बेनिफिट वगैरह जो भी है उसे हम डिनोमिनेटर में रख देते हैं। तो यहाँ पे ये उल्टा है, बट इफ यू फॉलो द अल्फाबेट्स अगेन यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक, ओके। फर्स्ट इज BCR, यहाँ पे हम ABCR नहीं बोलते, जस्ट BCR बोलते हैं। BCR मतलब क्या है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। अब देखो यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे भी एक चेंज हुआ है। अब तक आप देख रहे थे CECU मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस कॉस्ट यूटिलिटी, बट यहाँ में कैसा है, बेनिफिट कॉस्ट। तो सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कॉस्ट डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, आप अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करेंगे, बी पहले आ रहा है बेनिफिट, तो न्यूमरेटर में टोटल बेनिफिट आएगा डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट एज सी इज कमिंग लेटर। देन IBCR, इंक्रीमेंटल आ गया, इंक्रीमेंटल बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। जहां पे ही इंक्रीमेंटल आ रहा है, सपोज जहां पे भी इंक्रीमेंटल आ रहा है, आपको ये जान लेना है कि यू विल हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, बी पहले आ रहा है देन सी नेक्स्ट आ रहा है, सो बी विल बी इन द न्यूमरेटर, दैट इज बेनिफिट ऑफ ड्रग ए माइनस बेनिफिट ऑफ ड्रग बी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ड्रग ए माइनस कॉस्ट ऑफ ड्रग बी, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला चार्ट, और इसको आपको याद रखना है, इसके ऊपर में ही सारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूला है, जस्ट लेट्स रिवाइज वंस अगेन,
ठीक है, फर्स्ट तो हो गया आपका कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। उसमें कुछ याद रखना नहीं है, आपको बस टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर रेजिमेंट एंड कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट रेजिमेंट, दोनों का इफेक्ट सेम होगा, देन दोनों को हम माइनस कर देंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कितना पैसा हम बचाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, दोनों को एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट हम न्यूमरेटर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कॉस्ट यूटिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। So under this we are having two types of ratios. First है ACER, ICER. ACR का मतलब क्या है? Average Cost Effectiveness Ratio. दूसरा क्या है? ICER. That is Incremental Cost Effectiveness Ratio. Average Cost Effectiveness Ratio. इसमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फर्स्ट है कॉस्ट, तो कॉस्ट आएगा आपका न्यूमरेटर में, देन आएगा इफेक्ट जो है आपका डिनोमिनेटर में आएगा। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इफेक्ट विल गिव यू एवरेज कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो। देन अगर आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो करना है, देन यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट। अगेन सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, सी एंड ई। सो इन न्यूमरेटर इट विल बी कॉस्ट एंड इन डिनोमिनेटर इट विल बी इफेक्ट। सो कॉस्ट ऑफ ड्रग ए माइनस कॉस्ट ऑफ ड्रग बी डिवाइडेड बाय इफेक्ट ऑफ ड्रग ए माइनस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। Then we have cost utility analysis. Again same ACUR, ICUR. Again alphabetical order को follow करेंगे. So in case of ACUR, it will be total cost divided by total quali. Okay, quali is nothing but quality adjusted life years. Then next is ICUR. Since there is I, that is incremental, it means we'll have to do subtraction. So again we will follow the alphabetical order, that is cost of drug A minus cost of drug B divided by quality of drug A माइनस क्वालिटी ऑफ ड्रग बी। ठीक है, अब क्वाली का फॉर्मूला आप देख रहे हो ऊपर में लिखा हुआ है, जिस फॉर्मूला के जस्ट ऊपर में, दैट इज नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स, दैट इज द क्वांटिटी इनटू क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो देयर कैन बी क्वेश्चंस जहां पे आपको क्वांटिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों दिया जाएगा, सो यू विल हैव टू फर्स्ट मल्टीप्लाई दैट टू गेट द क्वाली, एंड समटाइम्स क्वाली डायरेक्टली आपको दिया जाएगा। अब आता है चौथे वाले में, जो मैंने ऑलरेडी बताया था, इसमें आप लोग हमेशा मिस्टेक कर सकते हो और करोगे भी डेफिनेटली। सो क्योंकि ये बहुत इजी है, ये है बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सिर्फ इसी में आपको याद रखना है कि कॉस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब में कॉस्ट न्यूमरेटर में रहता है। ठीक है, फर्स्ट बीसीआर, दैट इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, सो टोटल बेनिफिट बाय टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट इज आईबीसीआर, दैट इज इंक्रीमेंटल बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। सो बीसी अगेन, B will be in the numerator, C will be in the denominator. So benefit of drug A minus benefit of drug B by cost of drug A minus cost of drug B. ठीक है, आपको ये अभी ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहते हो तो ले लो, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द स्लाइड्स वंस द क्लास इज डन। ठीक है, नाउ हाउ टू इंटरप्रेट। ओके, ये तो हो गया आपका कैलकुलेशन, आपको पता चल गया कि ये आप अगर आप ये कैलकुलेशन कर देते हो, विद दिस ओनली यू विल गेट almost 5 out of 5 in most of the cases, but in some cases you might also have to add one line after the calculation, that is the interpretation line। ठीक है, तो वो इंटरप्रिटेशन लाइन आपको कैसे लिखना है, फर्स्ट ACER ACUR। ठीक है, नॉर्मली यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट बोथ एवरेज एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो, कॉस्ट यूटिलिटी रेशियो एंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो एंड ऑल दोस थिंग्स। बट जब भी आप इंटरप्रेट करने जा रहे हो, ठीक है, आप इंक्रीमेंटल वाले में नहीं जाना, क्योंकि इंक्रीमेंटल में समटाइम्स यू माइट गेट पॉजिटिव वैल्यू, समटाइम्स यू माइट गेट नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो, तो दैट विल कंफ्यूज यू। तो वहां पे आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ एवरेज वाले जो वैल्यूज है, एवरेज कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो, ठीक है, एवरेज कॉस्ट यूटिलिटी रेशियो एंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है, ये तीनों आपको देखना है जब भी आपको जो पूछा जाएगा, जो मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो फॉर एवरेज कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो एंड एवरेज कॉस्ट यूटिलिटी रेशियो, यहाँ पे जो ड्रग का वैल्यू, मतलब सपोज फॉर ड्रग ए यू आर गेटिंग ACR लोअर देन ड्रग बी, इट मींस इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, देन इन केस ऑफ कॉस्ट यूटिलिटी, जहां पे आपको ACUR कम मिल रहा है, दैट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव पर क्वाली गेन्ड, मतलब उसका कॉस्ट यूटिलिटी ज्यादा है। जस्ट इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से लाइक दैट। एक ये हो गया। अब जैसा हमने कैलकुलेशन के टाइम में बोला था कि बेनिफिट में हमें रिवर्स करना है सब कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम रिवर्स करेंगे। यहाँ पे बेनिफिट बाई कॉस्ट है, तो जहां पे आपको BCR का वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, दैट इज मोर कॉस्ट बेनिफिशियल। आप सोच लो ना, वैसे ही आप डायरेक्टली आप देख सकते हो, यहाँ पे BCR में क्या है, बेनिफिट एंड कॉस्ट। ठीक है, तो बेनिफिट न्यूमरेटर में आ रहा है। सपोज इफ वी हैव टू इंक्रीज दिस, व्हाट वी हैव टू इंक्रीज, वी विल हैव टू इंक्रीज बेनिफिट, और वही हमें चाहिए। तो सपोज ड्रग ए का BCR ज्यादा है, सो इट इज मोर कॉस्ट बेनिफिशियल। ऑन द अदर हैंड, बाकी दोनों, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड यूटिलिटी एनालिसिस में, जब
इफेक्ट, सॉरी, जब ACER एंड ACUR कम होगा, देन वी विल से इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, इट हैज गॉट मोर कॉस्ट यूटिलिटी। ठीक है, तो ये दो स्लाइड्स मेनली आपको याद रखना है। ये पहला वाला स्लाइड जहाँ पे आपके फॉर्मूलाज है, याद रखना, बेनिफिट में रिवर्स होता है, बेनिफिट में रिवर्स होता है। ठीक है, कॉस्ट नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। उसके बाद में इंटरप्रिटेशन में भी आपको ये याद रखना है, इफेक्टिवनेस एंड यूटिलिटी में अगर कम है तो इट इज बेटर। ओके, कम है तो मतलब मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, बेटर, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर हैज मोस्ट मोर कॉस्ट यूटिलिटी। एंड सपोज वी आर गिविंग यू बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, इन दैट केस अगर बेनिफिट ज्यादा है मतलब BCR ज्यादा है, देन इट इज मोर कॉस्ट बेनिफिशियल। ठीक है, क्लियर। Now let's go to the first type of analysis, that is cost minimization analysis. So here the question is about choosing between two equally effective antibiotics. Obviously equally effective hona hai, then only we can do the cost minimization analysis. So let's discuss this question. First, a hospital is choosing between two antibiotics for treating a bacterial infection. ठीक है, so drug A costs about 500, cost 5,000 per treatment course and it achieves a 95% cure rate. Drug B costs about 3,500 per treatment course and also achieves a 95% cure rate. So as you can see here कि effect जो है outcome दोनों का same है, 95% cure rate, 95% cure rate. Since both drugs produce identical clinical outcomes, तो इसमें हमने already mention कर ही दिया है, we have to calculate the cost difference and determine which drug should be preferred using the cost minimization analysis. तो ये तो आपको डायरेक्ट अभी ऐसे, लेट्स पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स, आप देखो इसका आंसर क्या होगा करके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अभी पॉज करो, जस्ट अपने नोट्स में ट्राई करो आंसर क्या आता है इसका। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस इसको करेंगे कैसे। आंसर तो डेफिनेटली सबको मिल गया होगा बाय दिस टाइम, बट वी नीड टू डू दिस इन स्टेप्स सो दैट यू कैन गेट टोटल मार्क्स ऑफ 5। नॉर्मली ये क्वेश्चन जो आता है आपका फार्माकोइकोनॉमिक एनालिसिस कम्स फॉर 5 मार्क्स। ओके, तो आप डायरेक्टली अगर आप क्या बोलते हैं लिख दोगे 5,000 माइनस 3,500, यू वोंट गेट द मार्क्स। सो देयर इज अ फॉर्मेट फॉर डूइंग दिस। सो दिस इज हाउ यू विल राइट इन एग्जाम। फर्स्ट स्टेप वन, आप गिवन इंफॉर्मेशन लिखोगे। ठीक है, सो ड्रग ए का कॉस्ट क्या है 5,000 पर कोर्स एंड क्योर रेट क्या है 95%। ड्रग बी का कॉस्ट क्या है 3,500 पर कोर्स एंड क्योर रेट कितना है 95%। अब सिंस आउटकम्स आर इक्वल, सो वी आर गोइंग टू डू व्हाट, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। नाउ यू विल राइट द फॉर्मूला, that is cost difference is equal to cost of drug A minus cost of drug B, and we know whenever this is applicable whenever the clinical outcomes equivalent. Okay, तो आपने गिवन इंफॉर्मेशन लिख दिया, जैसे हम लोग अपने 11 12th में मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वैसा ही करना है, सेम गिवन लिखना है फर्स्ट, देन वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन। सो कॉस्ट डिफरेंस 5,000 माइनस 3,000, 3,500, कोई भारी मैथ्स है नहीं, यू विल गेट 1,500। सो आपको पता चल रहा है कि ड्रग बी में हम पैसा बचा सकते हैं। सो बोथ ड्रग्स गिव आइडेंटिकल क्योर रेट्स एंड ड्रग बी इज प्रिफर्ड बिकॉज इट सेव्स 1,500 पर पेशेंट विद नो लॉस ऑफ एफिकेसी। सो ये चारों स्टेप्स आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि यू विल राइट द गिवन थिंग्स। दूसरा स्टेप आप लिखोगे फॉर्मूला। तीसरा स्टेप आप वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड चौथा स्टेप होगा आपका इंटरप्रिटेशन, जो मैंने पहले बताया था एक स्लाइड में कि ACER, ACUR अगर कम है so it is more cost effective, more cost, it is having more cost utility. On the other hand, BCR, that is benefit cost ratio, अगर it is more, then it means it is more cost beneficial. And in case of cost minimization analysis आपको तो वैसा कुछ करना नहीं है, डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। इन दैट केस यू विल जस्ट राइट कितने पैसे बचे हैं। सो यहाँ पे 5,000 मैंने 3,500 कर दिया है, तो वी विल गेट 1,500, सो वी आर सेविंग 1,500 पर पेशेंट। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। The next question is comparing the total treatment cost of two regimens. So here again we are having two antibiotic regimens and they are being compared for the treatment of urinary tract infection and both of them achieve 90% क्योर रेट। तो मतलब क्या है, आउटकम दोनों का सेम है। बट एक चीज आप नोट करो यहाँ पे आपके पास रेजिमेन ए है, रेजिमेन बी है, विच कंप्राइजेस ऑफ ड्रग कॉस्ट एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट। ठीक है, मॉनिटरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, यू आर व्हेनेवर यू आर गिविंग एंटीबायोटिक्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू कल्चर एंड सेंसिटिविटी, राइट। तो उसे हम मॉनिटरिंग में ले लेंगे, या फिर कुछ और टेस्ट वगैरह कुछ करना है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, उसको भी हम मॉनिटरिंग में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप
सब्ट्रैक्ट करोगे टोटल कॉस्ट, इट विल नॉट बी जस्ट द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस ड्रग कॉस्ट। आपको टोटल कॉस्ट लेना है। टोटल कॉस्ट मतलब क्या है? drug cost plus the monitoring cost, drug cost plus the monitoring cost. So that is why that is what they have written here in the next the question is total cost of each, calculate the total cost of each regimen and determine the more economical option using the cost minimization analysis. अब इस वीडियो को अगेन फिर से पॉज करो एंड देन ट्राई टू डू इट यूजिंग दोज 4 स्टेप्स। ठीक है, पहला स्टेप आपको पता है क्या है? आपको गिवन लिखना है। दूसरा स्टेप क्या है? आपको फॉर्मूला लिखना है। तीसरा स्टेप है यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड चौथा स्टेप द इंटरप्रिटेशन की कौन सा ज्यादा इकोनॉमिकल है। वैसे आप देखकर बोल ही सकते हो कि इकोनॉमिकल कौन सा ज्यादा है, बट स्टिल you have to practice it in that way because in that case only you will get full marks, 5 marks. If you write directly the answer, you will just get 1 or 1.5 maximum. So this is the answer. आप देख सकते हो फर्स्ट हमने वही सेम गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दिया। रेजिमेंट ए का टोटल कॉस्ट क्या है? ड्रग कॉस्ट था 200 एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट था 50। Then we have regimen B, drug cost 150 and monitoring cost 80. Then we are writing the formula. So यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या होगा? ड्रग कॉस्ट प्लस द मॉनिटरिंग कॉस्ट। ठीक है, सपोज ये मॉनिटरिंग नहीं रहता तो डायरेक्टली वी कुड हैव सब्ट्रैक्टेड दैट इज 200 माइनस 150, बट यहाँ पे मॉनिटरिंग का कॉस्ट भी ऐड हो रहा है तो हमें वो भी ऐड करना पड़ेगा। Then we will find the cost difference, that is total cost of drug A, that is regimen A minus total cost of regimen B. Now substitute the values for cost of regimen A, total cost of regimen A. 200 is the drug cost and 50 is for monitoring, so total is 250. On the other hand, for regimen B, it is 150 plus 80, that is 230. Then we will subtract these two, that is 250 minus 230. That is, we are going to save 20 rupees if we are using which regimen? That is regimen B. So finally, we are having the interpretation, that is with identical cure rates. Regimen B is more economical, obviously, because we are saving 20 rupees per patient treated. ठीक है, तो ये हो गया दो क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आपको आने वाले इससे थोड़े से टफ क्वेश्चन जो ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपको यहाँ पे आपको 3-4 रेजिमेंट दिया गया है तो आपको 3-4 रेजिमेंट का कॉस्ट आपको फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट, एंड देन यू विल हैव टू कंपेयर। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। So in this question, you can see for a patient who is suffering from acute sinusitis, a physician considers cotrimoxazole, that is 960 milligram twice daily for 7 days, amoxicillin 500 milligram 3 times daily for 7 days, and ampicillin 500 milligram 4 times daily for 7 days to be therapeutically equivalent. थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट ये टर्म आपका आ गया है यहाँ पे, तो आप समझ गए हो कि ये तीनों ही ड्रग्स विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। तो यहाँ पे आप अगर मैं सपोज कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस को हाइड भी कर देता तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस करना है। अब डिफरेंट प्रिपरेशंस दिए हुए हैं, उनके डिफरेंट कोड्स दिए हुए हैं, एंड यू आर हैविंग द प्राइस ऑफ द स्ट्रिप ऑफ दैट पैक। ठीक है, तो 10 टैबलेट्स। अब ये बेसिकली प्योर मैथ्स है। आपको ये ऐसा देखना है कि सपोज इफ अ चॉकलेट कॉस्ट 2 रुपीज, सपोज पैकेट ऑफ चॉकलेट्स comprises of 5 chocolates, okay, and the total cost is 10, then you need to find what is the price of individual chocolate in that, then it will be definitely 10 divided by 5, so 2 रुपए। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं, दैट इज सिटीज विद डिफरेंट कोड, दैट इज CTZ1। CTZ का मतलब क्या है? को ट्राइमोक्साजोल। वाई को ट्राइमोक्साजोल? CTZ का मतलब को ट्राइमोक्साजोल क्यों है? क्योंकि को ट्राइमोक्साजोल इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फा मेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोक्साजोल, दैट इज बेसिकली फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए बाय फार्माकोलॉजी नॉलेज। ठीक है, को ट्राइमोक्साजोल दैट इज सल्फा मेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोक्साजोल। और आप इसको ऐड करके देखो ना, तो ऐड करके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 800 प्लस 160 इट इज 960 मिलीग्राम। ठीक है, इसके 10 टैबलेट्स के स्ट्रिप आते हैं। फॉर वन स्ट्रिप द कॉस्ट इज 14 रुपीज। सिमिलरली एक दूसरा रेजिमेंट है जहां पे इसका ऑलमोस्ट हाफ कर दिया गया है डोज, दैट इज 400 मिलीग्राम प्लस 80, 480 जो आपका 960 का हाफ होता है, बट इसके भी 10 टैबलेट्स के स्ट्रिप का कॉस्ट है 7। Similarly, AMX1, AMX2, then we have AMP1, AMP2, AMP3. That is nothing but capsule amoxicillin with of different doses, 500 milligram, 250 milligram, then ampicillin के different doses. And per pack में कितने capsules मिलेंगे, उसके कितने cost है, कितना cost है, it is also provided here. Now, what is the question?
Find out 1 week's cost of therapy in terms of medication purchased from a pharmacist only for लीस्ट एक्सपेंसिव प्रिपरेशन, मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिपरेशन। अब आप तो ऐसे देख के बता नहीं सकते हो कि कौन सा लीस्ट एक्सपेंसिव है या मोस्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 7 डेज का। अब उसमें आपको कंसिडर ये भी करना पड़ेगा कि कौन सी दवाई को हम दिन में कितनी बार दे रहे हैं। सपोज अगर आप एमोक्सिसिलिन ले रहे हो तो 500 मिलीग्राम आपको 3 टाइम देना पड़ेगा, इट इज टीआईडी। On the other hand, if you are using ampicillin, it is 4 times. On the other hand, if you are using cotrimoxazole, then it is twice. तो आप ये सबको आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपको पता है कि कैसे करना होता है टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। सो यू विल डू दैट एंड देन यू विल फाइंड आउट विच इज द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रिपरेशन, उसका कॉस्ट कितना है, मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिपरेशन उसका कॉस्ट कितना है। मतलब आउट ऑफ दिस वन टू देन फाइव, दिस 7 प्रिपरेशन विच इज द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्क आउट द डिफरेंस इन 1 वीक्स कॉस्ट ऑफ थेरेपी फॉर द लीस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द थेरेपीज। मतलब कुछ नहीं, when once you find out the least expensive preparation and most expensive preparation for treatment for 7 days, मतलब 1 वीक का ट्रीटमेंट, then you will just subtract that. तो again I would ask you guys to pause the video now and take your notebooks and try to do this, ठीक है। then once you are done, again start playing this video. So I hope आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। now let's discuss कैसे करते हैं इसको। सो पहला पार्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट थेरेपीज फॉर 1 वीक। हमें अभी क्या निकालना है, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लीस्ट एक्सपेंसिव। सो फॉर कोट्राइमोक्साजोल वी नीड 960 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 7 डेज, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया हुआ है। दैट इज 960 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 7 डेज हमें चाहिए। तो अब इसमें हम फर्स्ट रेजिमेंट को लेंगे, दैट इज CTZ-1, which comprises of tablet sulfamethoxazole 800 milligram plus trimethoprim 160 milligram। ठीक है, तो 800 plus 160 it becomes 960 milligram। that is what we need, but it has to be taken twice a day। ठीक है, तो मतलब 2 टैबलेट पर डे लेना है। ठीक है, and suppose here what we are finding out, we are finding out the total like total number of tablets which are needed for 1 week। तो एक दिन में आप ले रहे हो 2 टैबलेट्स, सो एक हफ्ते में दैट इज 2 into 7 14 टैबलेट्स इन अ वीक। नाउ लेट्स गो बैक अगेन। CTZ में आप देख रहे हो कि 10 टैबलेट्स एक स्ट्रिप में रहता है, उसका कॉस्ट कितना है, 14 रुपीज। अब फिर से वापस आते हैं आंसर में। ठीक है, तो सो 10 टैबलेट्स दैट इज वन स्ट्रिप कॉस्ट रुपीज 14। सो 14 टैबलेट्स का कॉस्ट क्या होगा, अगेन जस्ट सेम मैथ्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 14 divided by 10 into 14, so the price comes around 19.6, 20 लेके चल सकते हो, 20 रुपीज। ठीक है, सो CTZ-1 रेजिम को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 1 वीक के ट्रीटमेंट के लिए आपको लगेगा 19.6 रुपीज। देन नेक्स्ट है CTZ-2 ट्रीटमेंट। ठीक है, उसमें क्या है, डोज जो है आधा हो चुका है, आप देख रहे हो। सल्फोमेथोक्साजोल पहले कैसा था, इट वाज 80 मिलीग्राम। नाउ हियर इन दिस FDC इट इज 400 मिलीग्राम। ट्राइमेथोप्रिम भी आधा हो गया है, 80 मिलीग्राम, सो टोटल हो रहा है 480। बट हमें क्या चाहिए, 960। तो एक टाइम भी अगर हम इस दवाई को दे रहे हैं, दैट इज वी नीड टू गिव 2 टैबलेट्स, क्योंकि एक टैबलेट का टोटल जो कॉम्पोजिशन है दैट इज 480 मिलीग्राम ओनली। सो वी नीड टू गिव, अगर जहां पे हम पहले इस रेजिमेंट में दे रहे थे, 1 टैबलेट दे रहे थे ना, 1 टैबलेट, यहाँ पे उस जगह पे हमें देना पड़ेंगे 2 टैबलेट्स। ओके, सो जब हम 2 टैबलेट देंगे देन ओनली इट विल मेक 960 मिलीग्राम। अगेन ये 960 मिलीग्राम हमें दिन में 2 बार देना है, तो 2 टैबलेट इंटू 2, सो पर डे वी विल हैव टू गिव 4 टैबलेट्स। आई होप इट इज क्लियर। पहले वाले रेजिमेंट में क्या है, डोज हमारा सेम है, जो FDC में है वही डोज हमें देना है, लेकिन दिन में 2 बार देना है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे वाले में क्या है, जो डोज हमें देना है उसका आधा डोज हमारे पास है, तो पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पर टाइम पर एपिसोड का जो डोज है वो मिलेगा। देन अगेन वी आर गोइंग टू गिव इट ट्वाइस डेली, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है ट्वाइस डेली देना है। सो वी हैव टू गिव इन टोटल 4 टैबलेट्स पर डे। सो ये क्लियर। अब एज पर द क्वेश्चन, हमें तो एक दिन का कॉस्ट तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है एक हफ्ते का कॉस्ट। सो एक दिन में अगर आप दे रहे हो 4 टैबलेट्स, सो व्हाट विल यू गिव इन अ वीक, इट विल बी 4 into 7, दैट इज 28 टैबलेट्स इन अ वीक। अगेन चलते हैं पीछे, लेट्स सी द टेबल। यहाँ पे क्या है, 10 टैबलेट्स एक स्ट्रिप में अवेलेबल है एंड इट कॉस्ट रुपीज 7। ठीक है, सो सेम थिंग दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर। ओके, स्लाइट मिस्टेक, मैंने एक्चुअली यहाँ पे 6 लेकर किया है कैलकुलेशन।
इट इज 7 हियर, तो आप 7 लेके करना। सो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स कंसिडर इट एज 6, क्योंकि आगे वाले कैलकुलेशन सब 6 से ही होंगे फिर। ठीक है, तो सपोज 10 टैबलेट्स का कॉस्ट जो है 6 रुपीज है। ठीक है, देन टू फाइंड आउट द कॉस्ट फॉर 28 टैबलेट्स, क्योंकि हमें एक हफ्ते में 28 टैबलेट्स चाहिए, सो इट विल बी 6/10 इंटू 28, विच कम्स अराउंड ₹16.8। तो आप ये तो आप समझ गए हो कि ये जो CTZ-2 रेजिमेंट है, ये कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है देन CTZ-1 रेजिम, क्योंकि CTZ-1 रेजिम में हमें टोटल प्राइस कितना लग रहा था, 19.6। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है। अब हमने सॉल्व कर लिया है सिर्फ कोट्रिमोक्सोजोल पार्ट। अब हमारे पास और भी दो टाइप ऑफ ड्रग है ना, एक है एमोक्सिसिलिन और दूसरा क्या है, एम्पिसिलिन। अब उसके भी डिफरेंट डिफरेंट रेजिम्स है, तो उसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं एमोक्सिसिलिन। फॉर एमोक्सिसिलिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 मिलीग्राम वी नीड टू टेक 3 टाइम्स डेली फॉर 7 डेज। ठीक है, तो पहला रेजिमेंट जो है AMX-1, विच इज कैप्सूल एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम। तो मतलब ये जो हमारा रिक्वायर्ड डोज है पर टाइम, एक टाइम का, वो ये फुलफिल कर रहा है। सो 500 मिलीग्राम इसने कवर कर लिया, बट हमें देना है दिन में कितनी बार, 3 बार देना है। तो 1 into 3, सो इट विल बी 3 कैप्सूल्स इन अ डे। तो एक दिन में आप 3 कैप्सूल्स दे रहे हो, तो एक हफ्ते में 3 into 7, दैट इज 21 कैप्सूल्स। एंड इन द क्वेश्चन ओनली इट वाज प्रोवाइडेड 10 कैप्सूल का जो स्ट्रिप है, इट कॉस्ट ₹65। सो हाउ मेनी कैप्सूल्स वी वांट 21 कैप्सूल्स फॉर अ वीक, सो इट विल बी 65 divided by 10 into 21, so it comes around ₹136.5, definitely more than the previous two regimens. Then we have AMX-2 नेक्स्ट रेजिम। यहाँ पे अब देख रहे हो एमोक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम है, मतलब जो डोज हमें रिक्वायर्ड है उससे आधा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक कैप्सूल से भी हमें काम नहीं चलेगा। पर मतलब पर टाइम, जब हम एक टाइम दवाई खा रहे हैं, हमें 2 कैप्सूल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 250 है। सो 250 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन ओनली यू विल गेट दिस 500 ना। सो वी नीड 2 कैप्सूल्स पर टाइम, मतलब एक बार आपको जब दवाई देना है, आपको 2 कैप्सूल देने पड़ेंगे इस वाले एमोक्सिसिलिन का, क्योंकि इसका जो डोज है 250 मिलीग्राम है। ठीक है, देन दिन में कितनी बार देना होता है, 3 बार। सो अगेन 2 into 3, तो मतलब क्या है, 6 कैप्सूल, 6 कैप्सूल्स यू आर गोइंग टू गिव इन अ डे। नाउ द सेम थिंग अगेन फॉर अ वीक, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 7। तो कितने आ रहे हैं, 42 इन अ वीक। अब देख रहे हो कि इसका जो स्ट्रिप है 10 कैप्सूल का, उसका कॉस्ट कितना था, ₹40। अब मैं पीछे वापस नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने वो ऑलरेडी क्वेश्चन तो देख लिया होगा कि क्वेश्चन क्या है, उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो जस्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग लाइक दैट। ओके, सो 10 कैप्सूल, उसका कॉस्ट क्या है, ₹40। ठीक है, तो हमें चाहिए कितने, 42 कैप्सूल्स का कॉस्ट। सो इट विल बी अगेन द सेम थिंग, 40 divided by 10 into 42, सो इट कम्स टू बी ₹168। अब ये इससे भी ज्यादा कॉस्टली है, पहले वाले से भी ज्यादा कॉस्टली है, AMX-1 से। सो इसके बाद शायद से आई थिंक AMX-3 नहीं था, एम्पिसिलिन का ही 3 रेजिमेंट था। सो एमोक्सिसिलिन का भी आपका 2 रेजिमेंट आपका हो गया है, कोट्रामोक्सिसिल का भी अपने 2 रेजिमेंट का कैलकुलेट कर लिया है। अब एम्पिसिलिन पे आते हैं। तो एम्पिसिलिन का कितना देना है हमें, 500 मिलीग्राम देना है 4 टाइम फॉर 7 डेज। ठीक है, तो अब पहला रेजिम, दैट इज AMP-1, विच इज कैप्सूल एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम। सो सिंस इट इज 500 मिलीग्राम, इट मीन्स इट इज ऑलरेडी कवरिंग पर डोज का कंट्रीब्यूशन ये कर रहा है। ठीक है, तो हमें जस्ट खाली इसको मल्टीप्लाई करना है बाय द नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज टू बी गिवन इन अ डे। सो 1 into 4, so we will have to give 4 capsules in a day. It means in a week 4 into 7, that is 28 capsules. अब एक स्ट्रिप में आपके पास है 4 कैप्सूल्स विच कॉस्ट ₹15। तो 28 कैप्सूल्स के आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर 28 कैप्सूल्स इट विल बी 15 divided by 4 into 28, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, ₹105। देन वी हैव नेक्स्ट रेजिम, एम्पिसिलिन 2, AMP-2। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैप्सूल एम्पिसिलिन का प्राइस कितना, सॉरी द डोज कितना है, इसका डोज है 250 मिलीग्राम। ठीक है, 250 मिलीग्राम। तो 250 मिलीग्राम का मतलब क्या है, हमें इसको सबसे पहले तो अभी इसे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एज पर द रिक्वायरमेंट वी नीड 500 मिलीग्राम 4 टाइम्स, सो पर टाइम वी विल हैव टू गिव 500 मिलीग्राम। सो 250 मिलीग्राम मतलब क्या है, 2। सो विल हैव टू गिव 2 कैप्सूल्स पर अटेम्प्ट। ठीक है, अब दिन में 4 बार देने हैं, सो 2 into 4, दैट इज 8 कैप्सूल्स इन अ डे। क्लियर। अब
आपको निकालना है एक वीक का, तो दिन में आप 8 कैप्सूल दे रहे हो, तो एक वीक में कितना दोगे, 8 into 7, दैट इज 56 कैप्सूल्स। अब हमें पता है 4 कैप्सूल का एक स्ट्रिप होता है जिसका कॉस्ट है ₹8, सो 56 कैप्सूल का कॉस्ट कितना होगा, दैट इज 8/4 into 56, दैट इज ₹112। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर, जस्ट सिंपल मैथ्स। एक एक आपको क्या बोलते हैं, बस ये देखना है कि एक कैप्सूल का कॉस्ट कितना है, उसके बाद में वीक का कॉस्ट आपको निकालना है, दिन में कितनी बार आपको कैप्सूल देना है या टैबलेट देना है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, यू विल जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले रेजिम में, दैट इज AMP3 विच इज कैप्सूल एम्पिसिलिन 500 मिलीग्राम। तो मतलब इसने पहले ही वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया है कि पर डोज अब हमें सिर्फ एक ही कैप्सूल देना है, क्योंकि 500 मिलीग्राम देना था, बट दिन में कितनी बार देना है, 4 टाइम्स, सो 1 into 4, सो 4 कैप्सूल्स इन अ डे, एंड इन अ वीक 4 into 7, दैट इज 28 कैप्सूल्स। अब इस वाले रेजिम का क्या था कि एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल थे, एंड फॉर 10 कैप्सूल्स इट वॉज कॉस्टिंग अराउंड ₹50। So for 28 capsules कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50 डिवाइड बाई 10 into 28, so it is ₹140। अब ये जो वैल्यूज है आपने जो देखा है, जो फाइनल वैल्यूज जो हमें मिले हैं, ठीक है, अब इसमें आप कंपेयर करो कि सबसे ज्यादा कॉस्टली क्या है। पहला क्या है, 19.6 है, देन 16.8 है, 136.5, 168, 105, 112, 140। So definitely without any doubt it is 168, और 168 का रेजिम का नाम क्या है, इट इज AMX2। तो अब देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। सो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिपरेशन इज AMX2 विदाउट एनी डाउट। अब लीस्ट एक्सपेंसिव प्रिपरेशन में आते हैं, ठीक है। 140 डेफिनेटली ये लीस्ट एक्सपेंसिव नहीं है, लीस्ट एक्सपेंसिव अपना पहले वाले ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो लीस्ट एक्सपेंसिव कौन सा है, 19.6 एंड 16.8, ऑब्वियसली इट इज 16.8, सो लीस्ट एक्सपेंसिव रेजिम इज CTZ2। चेक करते हैं आंसर में, लीस्ट एक्सपेंसिव प्रिपरेशन इज CTZ2। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या था, वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव। अब तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको बस इन दोनों रेजिम का जो टोटल कॉस्ट आ रहा है फॉर 1 वीक, यू विल हैव टू ट्रैक दैट। सो 168 माइनस 16.8 विच गिव्स 152.2 रुपीज। ठीक है, तो अगर आप क्या बोलते हैं इस रेजिम को यूज करो CTZ2, तो आप 151.2 रुपीज सेव करोगे। ठीक है, so this is the actual question which can come in your exam, क्योंकि cost minimization analysis is very simple, all you need to do is to find out the total cost and then you have to subtract it, that's it। And suppose in some exams if they don't ask you what is the difference, then you don't have to do it, but while writing the interpretation you will have to write that this regime saves at least x amount of rupees, इतना इतना पैसे बचाता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, but in most of the cases you will get both the parts, that is you will be getting this thing also, least expensive most expensive preparation, and you will also get the question where you will have to find out the difference between the most expensive and least expensive। So with this we are done with cost minimization analysis। I hope maximum आप लोगों को यही आंसर आया है, क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ये भी सब सिंपल है, बट सपोज आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पहले बताया नहीं, सपोज इन केस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक एनालिसिस देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज विलिंगनेस टू पे। ओके, विलिंगनेस टू पे में आपको दिस विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे, ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज समवॉट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल थिंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन दिस बिकॉज आपके प्रैक्टिकल्स में नॉर्मली ये नहीं पूछा जाता है, बट इफ यू इंक्लूड दिस कॉन्सेप्ट इन दिस, देन द टोटल इंटरप्रिटेशन विच वी आर डूइंग, नॉट इन केस ऑफ एक्सक्लूडिंग कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, बाकी जो तीनों एनालिसिस है, एक हो गया आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, दूसरा हो गया आपका कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये तीनों ही इफेक्ट हो जाएंगे और आपके इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो जाएगा बहुत। ठीक है, इफ यू कंसिडर दिस कॉन्सेप्ट दैट इज विलिंगनेस टू पे, तो ये आपको याद रखना नहीं है, ये आपके क्वेश्चंस में भी नहीं आने वाला है। जस्ट इन केस इन वाइवा समवन आस्क्स यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, देन यू कैन जस्ट इंक्लूड इट फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ओके, बट ये प्रैक्टिकल्स में आपको नहीं मिलने वाला है, प्रैक्टिकल्स में आपको सिर्फ डायरेक्ट खाली ACER, ACUR, ICER, ICUR, BCR एंड IBCR एंड along with that कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, यही आपको मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे दिया है, यू विल हैव टू फाइंड आउट ACER एंड ICER ऑफ टू एंटीबायोटिक्स। सो इन क्लिनिकल ट्रायल
Drug A cost rupees 1000 per patient and cures 70% of the patients, whereas drug B cost 1500 per patient and cures 85% of the patients. So calculate the average cost effectiveness ratio, that is ACER, for each drug. मतलब drug A का निकालना है, drug B का निकालना है individually, and then incremental cost effectiveness ratio of drug B compared to drug A. ठीक है, मतलब क्या, total cost of drug B minus total cost of drug A divided by total effect of drug A, sorry, effect of drug B minus total effect of drug A. ठीक है, तो ये तो हमने दिमाग में अपने फॉर्मूला डाल दिया है, अब इसको आंसर करना है वही चारों स्टेप्स की तरह सेम। गिवन लिखना है, उसके बाद में फॉर्मूला लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, एंड देन फाइनली इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के लिए आप आईसीआर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इट विल कंफ्यूज यू, क्योंकि इसमें कभी कभार वैल्यूज पॉजिटिव भी आते हैं, कभी कभार वैल्यूज नेगेटिव भी आते हैं, उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। आपको सिर्फ इस वाले वैल्यू पे फोकस करना है, दैट इज एवरेज वाले वैल्यू पे। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, एवरेज इन केस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो, इन केस ऑफ कॉस्ट यूटिलिटी रेशियो, जहां पे एसीईआर एसीयूआर कम हुआ, दैट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर कॉस्ट, हैविंग मोर कॉस्ट यूटिलिटी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में क्या है, जहां पे वो वैल्यू, दैट इज बीसीआर, दैट इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज मोर, दैट रेजिमेंट बिकम्स मोर कॉस्ट बेनिफिशियल। ठीक है, सब कुछ में आपको ये याद रखना है कि फॉर ऑल द केसेस बेनिफिट वाला जो एनालिसिस है, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वहां पे हर चीज रिवर्स है। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स डिस्कस दिस। तो पहले हमने गिवन इंफॉर्मेशन दे दिया, ड्रग कॉस्ट ऑफ ड्रग ए, कॉस्ट ऑफ ड्रग बी लिख दिया है, इफेक्ट एंड इफेक्ट अगेन, क्योर रेट वहां पे क्या था 70% एंड 85%, तो उसे हमने कन्वर्ट कर लिया है इन, we are actually converted the percentage into 70 by 100, which gives 0.7, and in case of 85%, it is 85 by 100, that is 0.85। तो आप परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर लेना पहले। ठीक है, दैट इज अ कॉमन मैथ, नो यू नो यू हैव टू कन्वर्ट दैट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, देन यू विल राइट द फॉर्मूलाज फॉर बोथ द थिंग्स, क्योंकि यहाँ में आपको एसीईआर आईसीईआर दोनों ही पूछा गया है। सो एसीईआर क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इफेक्ट। आईसीईआर क्या है, कॉस्ट ऑफ ड्रग बी माइनस कॉस्ट ऑफ ड्रग ए डिवाइडेड बाय इफेक्ट ऑफ ड्रग बी माइनस इफेक्ट ऑफ ड्रग ए। बी माइनस ए, आप ए माइनस बी भी कर सकते हो, बट यहाँ में ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है कि आपको बी माइनस ए करना है। क्यों, ड्रग बी कंपेयर टू ड्रग ए, तो फिर आप डायरेक्टली ड्रग बी माइनस ड्रग ए करोगे। आप ए माइनस बी भी कर सकते हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट सिंस दे हैव ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन, व्हाई टू गो अहेड एंड डू समथिंग व्हिच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, वी विल फॉलो द क्वेश्चन ओनली, राइट। अब आते हैं स्टेप 3 में, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहला है ACER ऑफ ड्रग ए। ठीक है, तो सिंपल है, कॉस्ट हमारे पास है, इफेक्ट हमारे पास है, 1000 डिवाइडेड बाई 0.70, सो इट कम्स अराउंड 1428.57 पर पेशेंट क्योर। आपको ये लिखा वाला जो है ना, पर पेशेंट क्योर, पर एडिशनल क्योर, जो आईसीआर में लिखा हुआ है, ये भी आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसको भी आप नहीं लिखोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट 5 मार्क्स। ठीक है, but this interpretation is the thing which you have to write। ठीक है, then similarly we will find it for ACER of B, that is 1500 divided by 0.85, यही लिखा हुआ है, so it comes around 1764.71। अब यहां से ही आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्या बोलते हैं ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। फॉर ड्रग ए इट इज 1400 एंड फॉर ड्रग बी इट इज 1700। आपको इंक्रीमेंटल कैलकुलेट भी नहीं करना है अभी, लेकिन इंक्रीमेंट आपको कैलकुलेट करना है, बट यहां से ही आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है कौन सा होना चाहिए, इसमें कौन सा कम है। ऑब्वियसली ड्रग ए 1400, सो ड्रग ए इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। देखा आपने, इंटरप्रिटेशन आपने ऐसे ही लिख दिया, आपको आईसीआर का जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, बट आपको कैलकुलेट तो तब भी करना पड़ेगा। बट my suggestion is that don't go for interpretation using the ICER values. Normally, that is what we have to do. The correct practice is to use ICER for doing the interpretation, because it will take into consideration the concept which I mentioned earlier, that is the willingness to pay। But क्योंकि willingness to pay हमारे like for in the UG questions it is not there, so we will take the easier route, that is we will take the ACER, ACUR and BCR। ठीक है, सो 1400 ये कम है डेफिनेटली, सो ड्रग ए इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट आईसीईआर भी देख लेते हैं, आईसीईआर भी हमने कैलकुलेट किया है। सो जस्ट दोनों कॉस्ट, आईसीईआर, सी पहले आ रहा है, ई बाद में, सो कॉस्ट इन न्यूमरेटर, इफेक्ट इन डिनोमिनेटर। सो कॉस्ट ऑफ ड्रग बी माइनस कॉस्ट ऑफ ड्रग ए, दैट इज 1500 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 0.85 माइनस 0.70।
तो ये आता है आपका समवेयर अराउंड 3333.33 पर एडिशनल क्योर। ये आपको याद नहीं रखना है, पर एडिशनल क्योर, पर पेशेंट क्योर, पर पेशेंट क्योर, ये आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। दिस इज if you are actually applying for the class assistant, like in MBBS we have class assistant exam. In that case you might have to write these things also, that is per patient cured, per additional cure. But for the normal practical exam ये सब कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ आपको गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है एंड फाइनल इंटरप्रिटेशन करना है यूजिंग द एवरेज वाला वैल्यूज, नॉट द इंक्रीमेंटल वैल्यूज। आई रिपीट इट अगेन, ओके। इंक्रीमेंटल वैल्यूज को देखकर आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि विलिंगनेस टू पे वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं देने वाले हैं फॉर UG students. It is not usually not given. So always focus on the average values only. और इफेक्टिवनेस एंड यूटिलिटी ने मैंने पहले बताया है, अगर ये वैल्यू कम हुआ सो दैट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड इज हैविंग मोर कॉस्ट यूटिलिटी। ऑन द अदर हैंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में क्या, अगर वैल्यू ज्यादा हुआ देन इट मींस दैट इज मोर कॉस्ट बेनिफिशियल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टू एंटी हाइपरटेंसिव्स आर कंपेयर्ड ओवर 1 year of therapy. Drug X, drug Y cost 200 per year. Next one, it is costing 350 per year, and it reduces the systolic blood pressure by 10 mmHg. Other one reduces systolic blood pressure by 18 mmHg. Calculate the ACER for each drug and ICER of drug Y relative to drug X. तो मतलब यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले आपको कॉस्ट डालना है किसका, ड्रग Y का एंड देन ड्रग X का। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा इसमें, इफेक्ट what will be the effect, that is also mentioned. It reduces systolic blood pressure by 10 mmHg. Other one reduces the blood pressure by 18 mmHg. So this will come in the effect. ठीक है, तो पहले वाले में लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन का आंसर, चलते हैं आंसर पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट फर्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दिया, कॉस्ट लिख दिया, इफेक्ट लिख दिया। ठीक है, देन वी हैव रिटन द फॉर्मूला कॉस्ट बाय इफेक्ट, दैट इज एवरेज कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो, देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो में सब्ट्रैक्ट करना है बस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वाई माइनस कॉस्ट ऑफ एक्स बाई इफेक्ट ऑफ वाई माइनस इफेक्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो इफेक्ट पहले वाले में इफेक्ट क्या था, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से बीपी रिड्यूस हुआ है, तो हमें लिखना है 200 डिवाइडेड बाई 10, सो इट इज 20 रुपीज पर mmHg। देन नेक्स्ट वन इज 350 डिवाइडेड बाई 18, सो इट कम्स अराउंड 19.44 पर mmHg। अब इसके बाद में आईसीआर आपको सॉल्व करने से पहले ही आपको यहाँ पे सोच लेना है इंटरप्रिटेशन क्या होगा। अब यहाँ पे देखो कौन सा एसीआर कम है, सो ड्रग वाई का क्या है, एसीईआर कम है, तो इसका मतलब ड्रग वाई इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अब इंटरप्रिटेशन देखो, ड्रग वाई इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड शुड बी प्रिफर्ड। ठीक है, तो हमें आईसीआर करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, बट आईसीआर आपको लिखना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है। even if it is not mentioned that you have to calculate ICR, still you need to calculate ICR because then only you will get the full marks. ठीक है, and for interpretation हमेशा since we are not using willingness to pay वाला concept, we will go with the average values. ठीक है, now next ICR हमने पहले ही देखा था कि y कंपेयर टू x चाहिए इनको इनको। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ y माइनस कॉस्ट ऑफ x डिवाइडेड बाई इफेक्ट ऑफ y माइनस इफेक्ट ऑफ x। तो यही लिखा हुआ है सेम यहाँ पे, सो इट कम्स अराउंड 18.75 पर एडिशनल mmHg। अब प्लस माइनस आपको क्या बोलते हैं पता है, अगर ऊपर में अगर दोनों ही वैल्यूज माइनस में आ जाते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो डेफिनेटली इट विल बिकम पॉजिटिव। इफ वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड इफ अनदर वैल्यू इज नेगेटिव देन यू कैन राइट इट इन माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एडिशनल mmHg, पर mmHg, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्लास असिस्टेंट एग्जाम में ही आपको लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स। ठीक है, अब मैं अब आगे वाला पार्ट पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब नॉर्मली आपको पूरे क्वेश्चन में आपको सब पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट आपको वैल्यूज देखने हैं, क्योंकि while you are doing this pharmacoeconomic analysis, along with that you will be also provided other questions, other spotters like AUC, ED50 and dose calculation। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा पढ़ोगे इसमें। ठीक है, डायरेक्ट रेजिमेंट पे चलते हैं। रेजिमेंट 1 कितना कॉस्ट कर रहा है, 15,000 एंड इट प्रोवाइड्स टू लाइफ ईयर्स गेन। ठीक है, मतलब यहाँ पे इफेक्ट क्या है, लाइफ ईयर्स का जो गेन हो रहा है, क्योंकि ये कैंसर पेशेंट है डेफिनेटली, तो उसका लाइफ ईयर कितना बच रहा है, तो 2। दूसरा वाला क्या है, 80,000 पे 3.5 लाइफ ईयर्स गेन करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट एसीईआर आईसीईआर ऑफ रेजिमेंट 2 ओवर रेजिमेंट 1। अब आप वीडियो को पॉज करो, ऑल ऑफ यू प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू कैलकुलेट दिस एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। सो लेट्स डिस्कस। सो
फर्स्ट हमने क्या किया, सेम गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दिया है, टोटल कॉस्ट एंड टोटल इफेक्ट क्या क्या है लिखा हुआ है। देन फॉर्मूला लिखना है, एसीआर का फॉर्मूला, आईसीईआर का फॉर्मूला। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हमने एसीईआर ऑफ ड्रग वन या रेजिमेंट वन, एसीईआर ऑफ ड्रग टू या रेजिमेंट टू हमने निकाला है, दैट इज 50,000 डिवाइडेड बाई टू एंड 80,000 डिवाइडेड बाई 3.5। तो पहले वाला आ रहा है 25,000, नेक्स्ट आ रहा है 22,857.14। अब आपको आईसीआर कैलकुलेट उसके बाद करने से उसके बाद करना है, लेकिन उसके पहले ही आप डिसाइड कर लो कि कौन सा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। एक है 25,000, एक है 22,000। और मैंने क्या बताया था, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में जो कम होता है दैट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। सो द रेजिमेंट टू इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अब आते हैं आंसर में, देख लो, रेजिमेंट टू हैज लोअर एसीईआर ओवरऑल, सो इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, आपको इतना भी नहीं लिखना है, आपको बस ये लिखना है रेजिमेंट टू इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, दैट्स इट। विद दिस यू विल गेट फुल 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, एंड दिस पर लाइफ ईयर पर एडिशनल लाइफ ईयर, ये भी आप नहीं लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर क्लास असिस्टेंट एग्जाम यू विल हैव टू राइट दिस। ठीक है, in fact in class assistant exam we actually include the concept of willingness to pay also, but let's not discuss that in this video। अगर आप लोगों को किसी को इंटरेस्ट है willingness to pay के ऊपर में, then we will look into that into late in some of the later sessions। ठीक है, अगेन आईसीईआर, सीई अल्फाबेट को फॉलो करना है। सी मतलब कॉस्ट ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, ई इफेक्ट जो है आपके डिनोमिनेटर में आएगा। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है आपको। ठीक है, और हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको कॉस्ट, दैट इज कंपेयर कैसे करना है, 2/1। तो पहले कॉस्ट ऑफ टू माइनस कॉस्ट ऑफ वन डिवाइडेड बाई लाइफ ईयर गेन विथ टू डिवाइड माइनस बाई लाइफ ईयर गेन विथ वन। सो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000 डिवाइडेड बाई 1.5, सो इट इज 20,000 पर एडिशनल लाइफ ईयर। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में, ठीक है, जैसा आपको एग्जाम में मिलेगा। So here you can see patients having symptoms of stomach ulcers were treated with three different drugs, A, B, and C. The annual treatment cost and outcomes are shown below. Here you can see parameter, then we have drug A, drug B, drug C. Total annual cost मतलब yearly जो cost है वो दिया हुआ है। For drug A it is 600 rupees, for drug B it is 650 rupees, for drug C it is 530 rupees. Then अब वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम फ्री डेज, मतलब पेन वगैरह नहीं होना। अल्सर में तो क्या पेन वगैरह होता है। सो कितने डेज आपको सिम्टम फ्री होंगे वंस यू टेक दिस ड्रग। ठीक है, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम फ्री डेज। नेक्स्ट दूसरा क्या है, परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हील्ड। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ही ड्रग का हम दो इफेक्ट देख रहे हैं। एक तो हो गया आपका सिम्टम फ्री डेज और दूसरा हो गया परसेंटेज ऑफ हील्ड पेशेंट्स। एंड इंस्टेड ऑफ टू ड्रग्स नाउ वी आर कंपेयरिंग थ्री ड्रग्स। तो यहाँ पे अगेन व्हाट इज द क्वेश्चन, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग यूजिंग एसीईआर एंड आईसीईआर। अगेन हमने आईसीईआर नहीं करना है यहाँ में, वी हैव टू जस्ट कंपेयर द एसीईआर वैल्यूज। बट एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है, वो क्या है, पहले तो आपको एसीआर निकालना है, दो ड्रग का नहीं तीन ड्रग का निकालना है आपको। ड्रग ए का निकालना है, ड्रग बी का भी निकालना है, ड्रग सी का निकालना है। उसमें से जो सबसे कम आ रहा है दैट विल बिकम मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। अब उसमें भी आपके पास है दो इफेक्ट्स। ठीक है, एक इफेक्ट तो हो गया आपका सिम्टम फ्री डेज और दूसरा क्या है, परसेंटेज ऑफ हील पेशेंट्स। अब इसमें से आप किसका निकालोगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्या आप सिम्टम फ्री डेज का निकालोगे या नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ हील पेशेंट्स का निकालोगे, क्या निकालना है, क्या लग रहा है, व्हाट डू वी हैव टू डू। So the answer to this is you will have to find it out for both the things separately। ठीक है, तो पहले आप सिम्टम फ्री डेज को एज एन इफेक्ट लेके चलोगे एंड उसके लिए आप निकालोगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो। ठीक है, तो एवरेज वाला तो यहाँ से आप बता सकते हो, दैट इज 600 डिवाइडेड बाई 250, 650 डिवाइडेड बाई 220, 530 डिवाइडेड बाई 250। ठीक है, देन यू विल फाइंड द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो। तो इसमें आपको ये दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय दिस, ड्रग ए ओवर ड्रग बी ओवर ड्रग सी ओवर ड्रग ए। ठीक है, ये आपको निकालना है, बट उससे आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। इंटरप्रिटेशन आपको किससे करना है, एवरेज वाले वैल्यू से करना है। तो विद दिस यू विल फाइंड आउट द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग अमॉन्ग्स ड्रग ए बी एंड सी फॉर सिम्टम फ्री डेज। ठीक है, ये हो गया पहला इफेक्ट। अब आते हैं दूसरे वाले इफेक्ट में, दैट इज परसेंटेज ऑफ हील्ड पेशेंट्स। सो अगेन सेम थिंग आपको इंडिविजुअली फिर से यहाँ पे करना है, बट यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 70%, 70%, 80%। ठीक है, सो 70% को हम कैसे लिखेंगे, 0.7। फॉर दिस ऑल्सो इट विल बी 0.7, दिस ऑल्सो दिस विल बी इट इज गोइंग टू बी 0.8। अब आते हैं आंसर में, देखते हैं कैसे किया गया है।
सेम थिंग अगेन, फर्स्ट हमने गिवन इंफॉर्मेशन लिखा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ए बी एंड सी, सिम्टम 3 डेज कितने दिन, दिस इज इन डेज, परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हील्ड, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। सो क्या निकालना था, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो। सो ACER ICER, कॉस्ट बाय आउटकम। नेक्स्ट ICER, कॉस्ट ऑफ वन ड्रग माइनस कॉस्ट ऑफ अनदर ड्रग डिवाइडेड बाय इफेक्ट ऑफ वन ड्रग माइनस इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन। तो अब ACER ऑफ ए, ACER ऑफ बी, ACER ऑफ सी एंड ICER, ठीक है, ये निकाल रहे हैं हमने यहाँ पे ये निकाला है फर्स्ट फॉर सिम्टम फ्री डेज, ठीक है। तो नीचे जो आप इफेक्ट के वैल्यूज डालोगे दैट विल बी द नंबर ऑफ सिम्टम फ्री डेज जो टेबल में दिया था, ठीक है। या आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 230, 220, 250। सो 2.61, 2.95, 2.12, ठीक है। इसमें सबसे कौन सा कम है, सबसे कम कौन सा है इसमें, इट इज 2.12, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हो, 2.12 कौन सा ड्रग का है, ड्रग सी। सिंस ड्रग सी हैज द लोएस्ट ACER एंड इज चीपर विथ बेटर आउटकम्स देन ड्रग ए एंड बी, सो ड्रग सी इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ICER मैंने सिर्फ सी और ए का किया है। सी और ए का क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, एक्चुअली ये पूरा भी आप नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये करना है फॉर गेटिंग फुल फुल मार्क्स, ठीक है। सी और ए का इसलिए किया है, बी का मैंने जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस, क्योंकि यहाँ पे तो आप ऑलरेडी देख रहे हो इट इज 2.95, तो डेफिनेटली ये तो कॉस्ट इफेक्टिव सबसे ज्यादा है ही नहीं। तो उसके नीचे जो आ रहा है 2.6 एंड 2.1, तो उन दोनों का मैंने निकाल दिया है ICER, बट यू विल हैव टू फाइंड आउट फॉर ICER ऑफ ए वर्सेस बी, ICER ऑफ बी वर्सेस सी एंड ICER ऑफ सी वर्सेस ए, तीनों ICER आपको निकालना है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन कहाँ से करना है, ACER से, लेकिन निकालना बराबर है आपको ACER भी और ICER भी, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वन इफेक्ट, दैट इज सिम्टम फ्री डेज वाला इफेक्ट हमने कवर कर लिया। अब दूसरा इफेक्ट क्या था, परसेंटेज ऑफ हील्ड पेशेंट्स। ये देखो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हील्ड, तो यहाँ पे भी सेम, ACER ऑफ ए बी सी निकालेंगे, 600, 650, 530 डिवाइडेड बाई परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे सबसे कम कौन सा है, अब देख लो यहाँ पे कौन सा कम है, सबसे 800 हो गया, 900 हो गया, 600 हो गया, सो सबसे कम है 600। सो for this effect also, percentage of patients healed, again in this also the most cost effective is drug C, यहाँ पे लिखा हुआ है drug C is the most cost effective। ICER मैंने निकाला नहीं है, वो आपको पता है कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ ड्रग ए माइनस कॉस्ट ऑफ ड्रग बी डिवाइड बाय इफेक्ट ऑफ ड्रग ए माइनस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। ये हो गया ए वर्सेस बी, देन वी हैव टू फाइंड आउट बी वर्सेस सी, देन वी हैव टू फाइंड सी वर्सेस ए, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको 4 ड्रग्स दे दिए तो आपको 4 ड्रग्स का करना है, लेकिन इंटरप्रिटेशन कैसे निकालोगे, एवरेज वाले वैल्यू से ही निकालोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, दैट इज कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। सो टू ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक डिजीज आर कंपेयर्ड यूजिंग क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, क्वाली आपको पता है ये, ठीक है। यहाँ पे ड्रग ए इट कॉस्ट 10,000 रुपीज एंड इट प्रोवाइड्स 1.2 क्वालीज, ऑन अदर हैंड ड्रग पी costs 15,000 rupees and it provides 2.0 qualis, ठीक है। Calculate the average cost utility ratio, okay, for each drug and the incremental cost utility ratio, that is ICUR of drug B over drug A, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई आपको सिंपली बहुत इजीली आपको ये मिल गया है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको मिला है यहाँ पे डायरेक्टली क्वाली, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू फाइंड आउट क्वाली। नॉर्मली आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है। एग्जाम में दे विल प्रोवाइड यू क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ ईयर सेव्ड, सो फ्रॉम दैट हाउ विल बी फाइंडिंग क्वाली, क्वाली इज क्वालिटी ऑफ लाइफ इनटू लाइफ ईयर सेव्ड, ठीक है। QOL इनटू LYS विल गिव यू QALY, ठीक है। बट सिंस यहाँ पे वाले ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने मेहनत करना ही नहीं है, डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं वही सेम 4 स्टेप्स करेंगे। फर्स्ट गिवन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे। अगेन इंटरप्रेट कैसे करना है, ICUR से नहीं करना है, ACUR से करना है, ठीक है। ACUR, ACUR और ACER में क्या बताया था मैंने, जिसमें वैल्यू कम हुआ वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है या उसका ज्यादा कॉस्ट यूटिलिटी होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे किया है हमने इसको। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लिख दिया है हमने, गिवन इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट लिख दिया, यूटिलिटी लिख दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है ACUR, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, C एंड U, कॉस्ट ऊपर में आएगा न्यूमरेटर में, U आएगा आपका यूटिलिटी जो है इन द फॉर्म ऑफ क्वाली, इट विल बी इन डिनोमिनेटर। देन ICUR, कॉस्ट ऑफ B माइनस कॉस्ट ऑफ A डिवाइडेड बाय क्वाली ऑफ B माइनस क्वाली ऑफ A, ठीक है। इंक्रीमेंटल मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें वैल्यूज डालेंगे,
तो यहाँ में आपने देख लिया ACU का वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाई 1.2 और B इट इज 15,000 डिवाइडेड बाई 2.2. So you can see what is the value per quali. It is 8,333.33 0.33 and 7,500. अब आपको ICUR तो निकालना है, लेकिन उसके पहले ही आपको इंटरप्रिटेशन का आंसर आपको पता होना चाहिए. क्या होना चाहिए आंसर? एक है आपका 8,000, दूसरा है 7,500. तो कौन सा कम है? बी. सो यू कैन सी ड्रग बी हैज लोअर ACUR. सो इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस पर यूनिट ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ गेन. ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका से लिखा हुआ है, आपको इतना भी नहीं लिखना है. सो आपको जस्ट सिंपली डायरेक्टली लिख देना है ड्रग बी सिंस इट इज हैविंग लोअर ACUR सो इट इज गोइंग टू हैव मोर कॉस्ट यूटिलिटी. बस इतना आप लिखोगे तो इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको ICUR कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अगेन सेम बी ओवर ए. सो इट इज 15,000 माइनस 10,000, ये कॉस्ट हो गया, डिवाइडेड बाई आपका यूटिलिटी. क्वालिटी तो आपको ऑलरेडी दिया गया था 2 माइनस 1.2. So it comes around 6,250 per additional quali. Per additional quali, per quali. याद रखने का जरूरत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है. ओनली इन क्लास असिस्टेंट एग्जाम. नॉर्मल आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में इसके लिए कोई मार्क्स आपका नहीं काटा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम रूमेटोइड आर्थराइटिस में. ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्वालिटीज दिया गया है. ठीक है, अब आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या रिक्वायर है. ठीक है, सो the thing is you need to know to look for only those data which you are going to use for calculation. और भी बहुत कुछ आपको क्या बोलते हैं डेविएट करने के लिए दिया जाएगा. मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका सिम्टम्स, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है. ठीक है, फार्माको इकोनॉमिक एनालिसिस आपको पता है. यहाँ पे क्वाली दे दिया गया है. क्वाली दे दिया तो मतलब ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ कि कॉस्ट यूटिलिटी निकालना है यहाँ पे. अगर आपको इफेक्ट और क्वाली दोनों दे दिए गए हैं तो आपको कॉस्ट आपको बोला जाएगा कि आप कॉस्ट यूटिलिटी भी कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस भी कर सकते हो. ठीक है, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. अगर आपको बोला है दोनों करो तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे 2,000 विथ क्वाली गेन क्या है 0.6. नेक्स्ट है 3,200, क्वाली गेन क्या है 0.9. अगेन ACUR निकालना है, ICUR निकालना है. ठीक है, वीडियो को आप पॉज करते हैं. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द आंसर. सो यहाँ पे आपने देख लिया सेम चीज. ठीक है, अगेन द सेम थिंग. इट्स गिवन इंफॉर्मेशन. आपको कॉस्ट दिया हुआ है, यूटिलिटी दिया हुआ है, आपने वो लिखा. फिर उसके बाद में आपको फॉर्मूला आपको लिखना है ACUR दैट इज कॉस्ट बाय क्वाली. ICUR, आई मतलब इंक्रीमेंटल, एंड CU सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है. ऊपर में कॉस्ट आएगा, नीचे आएगा आपका यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्वाली. देन सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन. For ACUR, आप देख रहे हो 2000 divided by 0.6 for P, drug P, and 3200 divided by 0.9 for drug Q. अब आपके पास वैल्यू आ चुका है दैट इज 3333.33 पर क्वाली एंड 3555.56 पर क्वाली. ICUR भी आपको करना है, लेकिन इसी में आपको फर्स्ट आपको फाइंड आउट कर लेना है कि कौन सा ड्रग का ज्यादा कॉस्टिलिटी है. ठीक है, तो कौन सा होगा? एक है आपका 3300, दूसरा आपका 3500. ऑब्वियसली 3300 छोटा है. सो you can see here treatment P has lower ACUR making it more cost effective choice per unit of quality adjusted life gain. इतना आपको लिखना नहीं है, आपको जस्ट लिख देना है कि it is having more cost utility because ACUR is lower. ठीक है, then ICUR again the same thing, you have to subtract. So in numerator you will be having alphabetical order को follow करेंगे. First cost divided by quali. Okay, 3,200 divided minus 200 divided by 0.9 minus 0.6. So it comes around 4,000 per additional quali. ठीक है, ये हो गया कंप्लीट. अब आते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चन में. अगेन दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन गेट इन एग्जाम. सो पेशेंट्स डायग्नोज्ड विद एडवांस स्टेज हार्ट फेलियर वेर इवेल्युएटेड. ठीक है, आपको इसमें कुछ ध्यान देना ही नहीं है. ठीक है, आपको एडवांस हार्ट फेलियर दिया जाए या लंग कैंसर दिया जाए, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. इसके बाद का जो स्टेटमेंट है ये आपका काम का स्टेटमेंट है फॉर डूइंग फार्माको इकोनॉमिक एनालिसिस. ठीक है, सो you can see here two treatments, that is drug P and drug Q are available with their associated treatment cost, life years saved and utility values. अब यहाँ पे आपको क्वाली नहीं दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है लाइफ ईयर सेव्ड एंड यूटिलिटी वैल्यूज. तो आपको क्वाली कैसे निकालना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लाइफ ईयर सेव्ड इनटू यूटिलिटी वैल्यूज दैट इज QOL इनटू LYS. QL इज नथिंग बट क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, सो हियर वी आर हैविंग द टेबल. ड्रग Q उसका कॉस्ट दिया हुआ है, लाइफ ईयर सेव दिया हुआ है एंड यूटिलिटी फॉर लाइफ ईयर सेव्ड. एंड देन they have asked you to find out cost effectiveness ratio and cost utility ratio for these two regimens. ठीक है, so this is a big question. Why?
because in this you will have to find out both cost effectiveness ratio also and cost utility ratio also. So you will have to do cost effective analysis, cost effectiveness analysis and cost utility analysis. इफेक्ट के लिए आप क्या लोगे? लाइफ ईयर सेव लोगे या यूटिलिटी फॉर लाइफ ईयर सेव लोगे? ऑब्वियसली कौन सा इफेक्ट है? लाइफ ईयर सेव जो हुआ है वही तो इफेक्ट है ना। तो आपको लेना पड़ेगा ये इन द फॉर्म ऑफ इफेक्ट, इसको नहीं लेना है। ठीक है, जैसे हमने वो पहले सिम्टम फ्री डेज इन केस ऑफ अल्सर जो हमने बोला था, उसमें आप याद करो परसेंटेज ऑफ पेशेंट हील्ड एंड सिम्टम फ्री डेज, दोज वेर इफेक्ट्स, दोनों ही इफेक्ट थे। तो वहां पे हमें दो बार कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करना पड़ा। बट यहाँ पे इफेक्ट सिर्फ एक ही है, दैट इज लाइफ ईयर सेव्ड। utility for life year saved effect नहीं है. So while we are doing cost effectiveness ratio, we will take only this into account, and when we are doing cost utility ratio, then we will multiply 4 into zero point 0.7, 5 into zero point 0.7. So 4 into zero point 0.7 is 2.8 and 5 into zero point 0.6 is 3.0. So now let's see कैसे किया है। आप इसको एक बार खुद ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, क्योंकि आपको तो पता है क्वाली का फॉर्मूला क्या है, लाइफ ईयर सेव्ड इनटू यूटिलिटी। ठीक है, और बाकी सबको तो आपको सब कुछ आपको पता ही है कैसे कंपेयर करना है। आपको एसीयूआर निकालना है, आईसीयूआर निकालना है। इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? एसीयूआर के वैल्यू को देखकर, कौन सा एसीयूआर का वैल्यू कम है, दैट इज हैविंग मोर कॉस्ट यूटिलिटी। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, तो आप कर दो ये। ठीक है, सिमिलरली आपको एसीईआर भी निकालना पड़ेगा यहाँ में, और आईसीईआर भी निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सो आप समझ लो जिसको ये क्वेश्चन मिलेगा, दैट पर्सन हैज टू डू इट quite fast. But don't worry about doing it fast, because you will be provided with the calculator। तो आपको मैथ्स अच्छा होना आपका जरूरी नहीं है। आप क्या बोलते, जस्ट if you have the if you know the formula, and if you are substituting in the right place, you will easily get the answer। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं है। अब आते हैं इसके आंसर में। तो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया। फर्स्ट स्टेप वन, वी हैव टू राइट द गिवन इंफॉर्मेशन, ड्रग पी, ड्रग क्यू, उसका कॉस्ट, लाइफ ईयर सेव्ड, यूटिलिटी। देन फर्स्ट वी आर फाइंडिंग आउट इफेक्टिवनेस रेशियो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो। ठीक है, सो अगेन वी आर राइटिंग ऑल द फॉर्मूलाज हियर। सो एसीईआर, एसीईआर क्या है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ ईयर सेव्ड। लाइफ ईयर सेव्ड इज व्हाट? नथिंग बट द इफेक्ट। देन क्वाली, लाइफ ईयर सेव्ड इनटू यूटिलिटी। देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? कॉस्ट यूटिलिटी रेशियो, कॉस्ट बाय क्वाली। ठीक है, तो ये हमने एसीईआर एसीयूआर के फॉर्मूलाज हमने लिख दिए। अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर ड्रग पी एंड ड्रग क्यू, दोनों का एसीईआर एंड एसीयूआर हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। सिर्फ बेनिफिट एनालिसिस वहां पे भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, बट इट विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? सी यू एंड सी ई। तो मतलब क्या, न्यूमरेटर में कॉस्ट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यूटिलिटी, यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्वाली। इन केस ऑफ इफेक्ट, ऊपर में आएगा आपका कॉस्ट, डिनोमिनेटर में इफेक्ट क्या है यहाँ पे? लाइफ ईयर्स सेट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फॉर एसी ईयर इट इज 80,000 डिवाइडेड बाई 4, 80,000 कॉस्ट, life year saved is 4, so it is 20,000 per life year saved. Then ACUR, 80,000 divided by 4 into zero point 0.7 to get the quali। Okay, quali देखो 4 into 0.7, that is 2.8, so 80,000 divided by 2.8। Similarly हमने निकाला है drug Q का वैल्यू। अब with this only you can find it out which one is more cost effective and which one is having more cost utility also। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं एसी ईयर ऑफ ड्रग पी, एसी ईयर ऑफ ड्रग क्यू, दोनों का आप देख रहे हो वैल्यू सेम आ रहा है, 20,000 पर लाइफ ईयर सेव, 20,000 पर लाइफ ईयर सेव। तो इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस थिंग, व्हाट डू वी से, द विलिंगनेस टू पे वाला कॉन्सेप्ट, देन विद दिस वी कैन से बोथ ऑफ दीज आर हैविंग same ACER। So in that case we can say both of them are equally cost effective। ठीक है, क्योंकि we are not taking into consideration willingness to pay। बट ऑन द अदर हैंड आप ACUR देखो अब। ठीक है, तो ACUR ड्रग पी का क्या है? इट इज 28,000 समथिंग, एंड ACUR ऑफ ड्रग क्यू इट इज 33,000। तो यहाँ पे कौन सा छोटा है? ऑब्वियसली ड्रग पी का ACUR छोटा है, दैट इज 28,571.43। सो इसका मतलब क्या है? विच ड्रग हैज गॉट मोर कॉस्ट यूटिलिटी? इट इज ड्रग पी। दोनों सेम कॉस्ट इफेक्टिव है, बट कॉस्ट यूटिलिटी किसका ज्यादा है? ड्रग पी का। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रग पी इज द मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन व्हेन यूटिलिटी इज कंसिडर्ड। तो आपको इतना मेहनत करना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है सिंस ACER इज सेम फॉर बोथ द ड्रग्स, सो दे आर
same, they are almost, they are actually cost effective, equally cost effective. On the other hand, when we are calculating the cost utility ratio, we can see that ACUR is of drug P is less compared to that of drug Q. So in that case, it is having more cost utility. Which one? Drug P. Then again, हमने सेम निकालना है, ICER एंड ICUR, सेम थिंग। यहाँ पे सिंस आई आ गया मतलब इंक्रीमेंटल, डेफिनेटली वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। सो पहले वाले में कॉस्ट ऑफ ए, सॉरी, कॉस्ट ऑफ पी माइनस कॉस्ट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय इफेक्ट ऑफ पी माइनस इफेक्ट ऑफ क्यू, ये आपको आ गया वैल्यू। उसके बाद में ICUR कॉस्ट ऑफ क्यू, सॉरी, कॉस्ट ऑफ पी माइनस कॉस्ट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय क्वाली ऑफ पी माइनस क्वाली ऑफ क्यू। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्वाली ऑफ पी माइनस क्वाली ऑफ क्यू नहीं लिखा, क्यू माइनस पी लिखा हुआ है। ठीक है, इट्स ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब खाली बस साइन में डिफरेंस आने वाला है, वेदर इट विल बी प्लस और नेगेटिव, दैट विल बी द डिफरेंस। सो दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट यू, बट ऑलवेज ट्राई टू फॉलो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर यहाँ पे आपको लिखा गया होता पी ओवर क्यू या क्यू ओवर पी, so you will have to do in that way, but since here thing is mentioned like it is p over q or q over p, so you can do either way, दोनों तरीके से ये करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So with this we have completed the cost utility analysis also, almost complete हो चुका है। अब आते हैं बेनिफिट एनालिसिस में, बहुत ही सिंपल है, बट ये मार्क दिस वर्ड्स ऑफ माइंड की डेफिनेटली यहाँ पे जितने लोग भी अब ये सुन रहे हो, 100%, 100% नहीं बोल रहे, इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसमें मिस्टेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉस्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। बेनिफिट एनालिसिस जब भी आप कर रहे हो, कॉस्ट हमेशा डिनोमिनेटर में आने वाला है इन ऑल अदर केसेस। ठीक है, चाहे वो ACER हो गया, ACUR हो गया, ICER हो गया, देन ICUR हो गया, हर एक केस में कॉस्ट न्यूमरेटर में आता है, बट ओनली इन केस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कॉस्ट कम्स इन द डिनोमिनेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट मेक दिस मिस्टेक, बिकॉज इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, आपको डायरेक्टली आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा, कॉस्ट दे दिया जाएगा, एंड व्हाट मोस्ट पीपल डू इन दैट केस, दे विल राइट द कॉस्ट इन न्यूमरेटर एंड बेनिफिट इन द न्यूमरेटर एंड दे विल राइट द आंसर, तो पूरा आपको जीरो मिलेगा, कोई स्टेप का भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है उसमें। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन योर माइंड। ओके, सो लेट्स सी, find out the BCR, that is benefit cost ratio, which is equivalent to the average benefit cost ratio. Since we don't have average benefit cost ratio, we are just simply saying it as benefit cost ratio. Then incremental benefit cost ratio for two public health programs. Instead of comparing two drugs, we are comparing here two public health programs. ठीक है, so health department is comparing to public health programs, both measured in monetary terms, that is benefits. So program A is costs 40,000 and it generates 1 lakh income benefit. ठीक है, पैसा। Then on the other hand, we are having program B, which costs about 70,000 and it generates income of 1 lakh 50,000 in benefit. So now they have asked you to find out the benefit cost ratio for each program, मतलब individual program का आपको निकालना है, and then incremental benefit cost of program B over program A. इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे हम? अगेन सेम, एवरेज वैल्यूज को निकालना है, एवरेज वैल्यूज को देख के निकालना है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के वैल्यू को देख के नहीं निकालना है, BCR के वैल्यूज को देख के निकालना है। और यहाँ पे एक सीन उल्टा है, आपको याद है वो क्या है? यहाँ पे जिसका वैल्यू ज्यादा हुआ दैट इज मोर कॉस्ट बेनिफिशियल, है ना? सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट यूटिलिटी में, दोनों में जिसका वैल्यू कम हुआ दैट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव और मोर हैविंग मोर कॉस्ट यूटिलिटी। इन केस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसका वैल्यू ज्यादा हुआ दैट विल बी मोर कॉस्ट बेनिफिशियल। ये आपको दिमाग में याद रखना है। और कभी भी आप इंटरप्रेट कर रहे हो, क्योंकि हम विलिंगनेस टू पे वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू गो फॉर द एवरेज वाला वैल्यू, नॉट टू गो विद द इंक्रीमेंटल वाला वैल्यूज, बिकॉज इंक्रीमेंटल वैल्यू में आपको कभी प्लस साइन आ जाएगा, आपको नेगेटिव आ जाएगा, then you cannot be, then it will be very confusing for you to interpret that, but you can interpret using that also. But since we don't have willingness to pay wala concept, then why to waste time in doing interpretation using ICBR and, sorry, IBCR, ICER, ICUR? Simply go with the average values na. So now let's see कैसे हमने ये क्वेश्चन को किया है। सेम अगेन 4 स्टेप्स, फर्स्ट गिवन लिखना है, देन फॉर्मूला लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, इंटरप्रिटेशन लिखना है। ठीक है, सो फर्स्ट हमने लिख दिया है यहाँ में गिवन। सो गिवन वैल्यूज जो है, कॉस्ट का वैल्यू हमने दे दिया है, बेनिफिट का वैल्यूज हमने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद
फॉर्मूलास लिख दिया, बीसीआर आईबीसीआर, सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, दैट इज बीसी। सो total benefit divided by total cost. IBCR again, benefit of drug B minus benefit of drug A divided by cost of B minus cost of A. इतना याद रखो कि बेनिफिट एनालिसिस में हमेशा कॉस्ट नीचे आएगा. इफ यू रिमेंबर दिस यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक इन फार्माकोइकोनॉमिक्स, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एरियाज इन योर ऑस्पी सेक्शन. ओके, सिर्फ 4 फॉर्मूले आपको याद रखना है, एसी, ईआर, एसी, बीआर, एसी, यूआर एंड सॉरी नॉट 4 फॉर्मूले, आपको एक्चुअली 2 ही फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, एसी वाला फॉर्मूला एंड आईसी वाला फॉर्मूला. ठीक है, एसी में क्या आपको डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, आईसी वाले में आपको माइनस करके डिवाइड करना है. ठीक है, अब उसमें इफेक्टिवनेस एंड यूटिलिटी में आपको पता है कॉस्ट ऊपर आने वाला है, और बेनिफिट में आपको क्या करना है, कॉस्ट को नीचे लाना है. सिमिलरली इंटरप्रिटेशन में भी आपको क्या करना है, आईसी वाले वैल्यूज को यूज नहीं करना है, एसी वाले वैल्यूज को यूज करना है. ठीक है, तो इफेक्टिवनेस और यूटिलिटी में जब वैल्यू कम होता है दैट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव और इज हैविंग मोर कॉस्ट यूटिलिटी, whereas in case of benefit analysis when the value is more then it is more cost beneficial. अब ऐसे सोचो ना, न्यूमरेटर में तो यहाँ पे बेनिफिट है, जब बेनिफिट ज्यादा होगा तभी तो इसका वैल्यू बढ़ेगा ना, बीसीआर का वैल्यू बढ़ेगा. सो अगेन नेक्स्ट वी आर जस्ट सिंपली पुटिंग द वैल्यूज, वी आर गेटिंग द आंसर. ये मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. तो अब इसमें आप देखो, अब इसमें जब आपने बीसीआर ऑफ ए, बीसीआर ऑफ बी कर लिया है, उसके बाद में आईबीसीआर तो आपको कैलकुलेट करना है, उसके पहले ही आपको इंटरप्रिटेशन करना है. ठीक है, एक हो गया आपका 2.5, दूसरा आपका है 2.14. तो यहाँ पे हम क्या 2.14 को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये छोटा है? नहीं. क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट एनालिसिस है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. यहाँ पे हमें देखना है कौन सा वैल्यू बड़ा है. So that is 2.5. It is more compared to 2.14. So drug B, sorry, here it is program, sorry, drug A, sorry, program A is more cost beneficial. ठीक है, program A has got higher standalone BCR. That's why it is more cost beneficial. क्लियर? समझ आ गया? जिसका वैल्यू ज्यादा है दैट विल बी मोर कॉस्ट बेनिफिशियल इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसका वैल्यू कम है दैट विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, दैट विल बी हैविंग मोर कॉस्ट यूटिलिटी इन कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस. क्लियर? एवरीथिंग इज रिवर्स इन केस ऑफ बेनिफिट एनालिसिस. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. So I would recommend you guys to pause the video right now and try to do this question on your own. Okay, so here we are comparing vaccination versus screening. ठीक है, दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है, दोनों का बेनिफिट दिया हुआ है. आपको ऊपर वाले प्रोग्राम, एक बनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम, स्क्रीनिंग प्रोग्राम, इनके बारे में आपको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, all you need to see is these values because these are the values which you are going to use for calculating. Again, calculate the BCR, IBCR, and again definitely you will have to say which is more cost beneficial. They won't mention you that you will have to say cost which is more cost beneficial. आपको ये खुद ही लिखना है in the form of interpretation, because if you don't write the interpretation then you will lose 1 to 0.5 marks, 0.5 to 1 marks आपका गया. ठीक है, सो आते हैं आंसर में, देखते हैं क्या लिखा है. सेम स्टेप 1 गिवन इंफॉर्मेशन लिख देंगे, कॉस्ट बेनिफिट दोनों लिख दिया. उसके बाद में स्टेप 2 फॉर्मूला जो है हमने लिख दिया, बेनिफिट बाय कॉस्ट. कॉस्ट हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा in case of cost benefit analysis. Then substituting the values, you are getting 4 and 3.5. IBCR भी है, बट IBCR आपको लिखने की जरूरत नहीं है. IBCR खाली आपको कैलकुलेट करना है, उससे आपको इंटरप्रेट नहीं करना है. यहाँ पे आप वैल्यूज देखोगे, वैक्सीनेशन के लिए 4 आ रहा है एंड स्क्रीनिंग के लिए आपका आ रहा है 3.5. तो कौन सा ज्यादा बड़ा है? वैक्सीनेशन वाला 4. सो विच इज मोर कॉस्ट बेनिफिशियल? ऑब्वियसली विच इज मोर 4. तो वैक्सीनेशन इज गोइंग टू बी मोर कॉस्ट बेनिफिशियल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. Vaccination alone has the higher BCR, that's why it is more cost beneficial. Although just mistakenly type हो चुका है, just ignore that. Okay, so clear, ये भी हो गया. अब आते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चन में. एक्चुअली ये टफ है नहीं, ये भी सिंपल ही है, जो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं. ठीक है, थोड़ा word problem kind of thing. Again you will have to ignore all the nonsense things which are being provided in this, जिसका आपको कोई रिश्ता नाता नहीं है फार्माकोइकोनॉमिक एनालिसिस से. न्यू इंटरवेंशंस मैनेजिंग chronic kidney disease have been introduced. Their cost and monetary benefits are shown below. आपको इसको कहीं यूज करना है, कहीं यूज नहीं करना है. इसके बाद में आपको टेबल दिया हुआ है, दिस इज द थिंग विच यू आर गोइंग टू यूज. एक इंटरवेंशन है सी, इंटरवेंशन है डी. फॉर दैट यू आर प्रोवाइडेड विद द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. सिंपल, बस अब इसको आपको गिवन में लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, एंड देन
सब्स्टिट्यूट एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से ही आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो कैसे करोगे, करके देखो आप, वीडियो को पॉज करो, तो करेक्ट हो जाना चाहिए। जस्ट लेट्स सी द प्रोसेस वंस अगेन। ये मैं इसलिए आपको ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इस प्रोसेस को बार बार देखोगे तो इसको आपको, ये आपका एक हैबिट हो जाएगा कि आप हर एक क्वेश्चन को इन 4 स्टेप्स में करोगे। नहीं तो अगर आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मिलेगा तो आप क्या करोगे कि ये स्टेप्स आप डायरेक्ट स्किप करके डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुल 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको 3 या 2.5 ऐसे ही मिलने वाले वाले हैं। बट इफ यू राइट ऑल दिस 4 स्टेप्स, यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स, कोई नहीं रोक सकता है। तो हमने फर्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दिया, कॉस्ट एंड बेनिफिट लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया बीसीआर का एंड आईबीसीआर का। ठीक है, अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और क्योंकि ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है तो नीचे कॉस्ट आएगा। ठीक है, डेल्टा कॉस्ट मतलब क्या, चेंज इन सब्ट्रैक्शन, दैट इज कॉस्ट ऑफ intervention C minus cost of intervention D. ठीक है, then we will calculate the BCR for C and D and then IBCR. अब यहाँ पे देखो BCR क्या आ रहा है, 4 and 2.67, वेरी इजी, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा ज्यादा है, 4। तो इसका मतलब कौन सा ज्यादा कॉस्ट बेनिफिशियल होगा, कॉस्ट बेनिफिशियल इज इंटरवेंशन सी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, intervention C has got higher overall BCR, that is 4.0. So intervention C is more cost beneficial as compared to intervention D. So with this, we have completed all the 4 different types of complete pharmacoeconomic analysis जो आपको required है। तो पहला था कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, ठीक है। दूसरा था आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस एंड फाइनली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस इज वेरी सिंपल, एक्चुअली सारे ही सिंपल है, इफ यू इग्नोर द विलिंगनेस टू पे वाला कॉन्सेप्ट। ओके, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस में बस आपको टोटल कॉस्ट निकालना है एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। और कितने पैसे बच रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद में वो आपको लिख देना है इंटरप्रिटेशन में। बाकी इफेक्टिवनेस एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस एंड बेनिफिट एनालिसिस, हर एक में आपको 2 रेशियोज निकालना है फॉर ईच ड्रग एंड पेयर ऑफ ड्रग्स। ओके, तो वो रेशियो क्या है, एक हो गया आपका एवरेज रेशियो, दूसरा हो गया इंक्रीमेंटल रेशियो। एवरेज रेशियो में आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है, इंक्रीमेंटल रेशियो में आपको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करना है। ठीक है, हर एक में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे। ठीक है, सो फर्स्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस में ACER ICER, सो सी एंड देन ई। तो ऊपर में आएगा आपका कॉस्ट, नीचे में आएगा आपका इफेक्ट। सी देन ACUR ICUR, ऊपर में आएगा आपका कॉस्ट, नीचे आएगा आपका क्वाली। ठीक है, देन BCR एंड IBCR, ऊपर में आएगा आपका बेनिफिट, नीचे आएगा आपका कॉस्ट। ठीक है, तो बेनिफिट में रिवर्स, हमेशा याद रखना, बेनिफिट में कॉस्ट इज गोइंग टू कम इन डिनोमिनेटर। देन whenever you are doing interpretation, how will you do the interpretation? Since we are ignoring the concept of willingness to pay, we are not going to use ICER, ICUR, IBCR for interpretation. We will just simply compare ACER, ACUR and BCR of different interventions. ठीक है, इन केस ऑफ ACER, ACUR, जहां पे सबसे लोएस्ट वैल्यू आपको दिखा, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन और द ऑप्शन विद द मोस्ट कॉस्ट यूटिलिटी। क्लियर? इन केस ऑफ बेनिफिट अगेन सब कुछ उल्टा है, रिवर्स करना है। यहाँ पे वेर एवर यू गेटिंग BCR, दैट इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, टू बी द हाइएस्ट, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस एंड यूटिलिटी में अगर वैल्यू कम हुआ तो इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव या हैविंग मोस्ट इज हैविंग मोर कॉस्ट यूटिलिटी। whereas इन केस ऑफ बेनिफिट जहां पे वैल्यू आपका बढ़ा, ठीक है, इन दैट विल बी मोस्ट कॉस्ट बेनिफिशियल। ठीक है, क्लियर? सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यू विल हैव टू जस्ट गो थ्रू ओनली 3 स्लाइड्स एट द एंड। बाकी तो आप बस फॉर्मूले में आपको इसको फिल करना है एंड आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, जो भी है आप बस वही करना है आपको उसमें। ठीक है, तो आपको मेनली ये 2 स्लाइड्स, ये 3 स्लाइड्स आपको देखने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, ये फॉर्मूला, रट्टा लगा लो इसको। एक्चुअली रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट खाली आपको जस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, और ये याद रखना बेनिफिट में उल्टा है, कॉस्ट नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। देन इंटरप्रिटेशन अगेन सेम थिंग, पहले के 2 जो इफेक्टिवनेस एंड यूटिलिटी है उसमें जहां पे वैल्यू कम हो रहा है, दैट इज हैविंग मोर इफेक्टिवनेस, मोर यूटिलिटी। और बेनिफिट्स में क्या है, जहां पे वैल्यू बढ़ रहा है, दैट इज गोइंग टू हैव मोर बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दीज 3 आर द इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। उसके बाद में आपको स्टेप्स पता है, 4 स्टेप्स में करना है आपको हर एक चीज। पहला स्टेप क्या होगा, राइट द गिवन थिंग्स। दूसरा स्टेप क्या है, राइट द फॉर्मूले। देन तीसरा स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूशन करोगे। फोर्थ स्टेप क्या है, इंटरप्रिटेशन लिखोगे। दैट्स इट।
ठीक है। So with this, we have completed all the different types of questions which can be asked for pharmacoeconomic analysis in case of UG practical, OSCE, and with this, I think we have covered the UG level of content. But just in case if you want to prepare for the class assistant exam, or in case you want to prepare for the PG level types of question, in that case we might keep one more class jahan pe we will include the concept of willingness to pay. But in most of the cases in UG practical, you won't be asked anything regarding the concept of willingness to pay. So with this, I am completing this tutorial. I hope you liked this class, and with this, now you are quite uh, confident. I hope you are confident to solve these kind of questions and don't do mistake in cost benefit analysis. I repeat this once again, हमेशा हर बार we have seen in most of the cases students do mistake. Even I used to do the same mistake in cost benefit analysis. In cost benefit analysis, cost is going to come in डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर में नहीं आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में आने वाला है, क्योंकि बीसीआर आईबीसीआर, ठीक है. So with this, we are completing this. I hope you like this. So if you like my content, please do like, share, subscribe, comment, and also press the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. Thank you, guys.